I passed out long back in 2004. Since then, I've been practicing homeopathy in my earlier I was working with Dr. Batra's chain of clinics. For 11 years, I've worked there. Now, presently, I'm having my own clinic in Mohali where I'm practicing. Now, the basic idea of this workshop is to give you certain tips, which are going to be very quick tips and which are going to help you in, seeing the patients effectively, bringing in results. What happens is that when we take a case or when we start taking the details of a patient, we usually miss out on certain things. We usually get confused, and when we are doing it, we get prejudiced with a lot of medicines which are coming in our mind. Maybe we start with something when we start taking the case, we feel like the patient is natrimure. In between, you feel like that the patient is sulfur. Further down the line, you feel that no, the patient is pulsatilla. But finally, when you do the repertorization, the medicine comes out to be argentum metallicum. So basically, what we need to understand that how exactly we need to approach a case if we want that we should arrive at the simillimum, number one. Before that, what we are going to touch upon is a slight amount of detail regarding a clinical diagnosis. In homeopathy, normally we avoid taking a diagnosis because we feel कि इसका क्या जरूरत है, क्या पड़ी है कि हम पेशेंट का ठीक है. If the patient is coming with a diagnosis to us, we take that diagnosis कि ठीक है पेशेंट को allergic rhinitis है, पेशेंट को asthma है, but we never try to ascertain on our end that whether the diagnosis is correct or no. Lots of skin diagnoses that come to us are misdiagnosed cases of skin where the patient is coming from an allopathic doctor and even the allopathic doctor has diagnosed it wrongly. So we need to understand that what is the importance of that clinical diagnosis. How you will do it for different diseases, we will take up in the further lectures that are going to come. But presently, you need to understand that why and how the clinical diagnosis has to be reached. And last of all, we are going to touch upon the idea of potency, जिसमें बहुत लोगों को confusion रहता है. At times we don't know what we need to prescribe. Whether it has to be in 30, it has to be in 200, it has to be in 60, what potency we need to, and what are the parameters for deciding that this is the potency that needs to be given. And all these rules, all these details that I am going to now today share with you are mentioned in the Organon of Medicine. So it is not something that is coming out of the blue. If you are actually following religiously the Organon of Medicine, you will find everything in there. Dr. Hahnemann has mentioned everything regarding the selection of the medicine. He is mentioning about the knowledge of the disease, knowledge of the medicine, and what potency the medicine needs to be given in under what circumstances. So we are going to basically touch upon this. I want all of you to be very, very interactive in this. So I again request you to put on your cameras. I want to see your beautiful faces so that, we are able to discuss, and rather than making it like a lecture in a class, let's interact and try to understand what exactly, so that you also come to know that where you are lacking and which part of you need to improve upon. So let us start with the presentation. The first thing, what do we mean by a clinical diagnosis? What basically is the exact definition of a clinical diagnosis? So clinical diagnosis basically means when you identify the disease through three parameters. The first parameter is patient history, where the patient is going to give you details about his history, which is going to include the chief complaint, which is going to include the associated complaint, which is going to include any concomitant symptoms and the modalities, and which is also going to include the history of the present illness. It is also going to include the family history, and it is also going to include any sort of past diseases that he has suffered from. So ultimately, when we talk of a patient history doesn't only mean that you are taking the symptoms of the patient and you are jotting down the symptoms of the patient, the chief complaint and the associated complaint, but it means the complete history which is related to the clinical diagnosis. Now here, when I'm talking of patient history, I am not talking of the points of physical, generals, and mentals. I'm only talking to you in terms of a practice of medicine diagnosis where you need to note down all the symptoms of that particular patient so that you are able to arrive at the right diagnosis. So what happens? Suppose a patient is coming to you. Patient is complaining of a problem of cough. The cough starts somewhere in the midnight. He wakes up from the sleep. He's not able to sleep. He has had a history of a viral infection in the past where he was not well. वो 4-5 दिन का उसका fever का history रहा.
सो अल्टीमेटली आप वो जो सारे आपको चीजें बता रहा है, दैट इज व्हाट यू नीड टू नोट डाउन. Here, this patient history is purely related to the clinical patient history that the patient is giving to you. Those symptoms which will help us give a name to that particular illness that he is suffering from. Now, once you know that the patient has given you these symptoms, the next step is a physical examination, which most of us miss out. सो अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास एक पेशेंट अपनी हिस्ट्री दे रहा है जहां पर वो आपको सिम्टम्स बता रहा है, अगर वो चेस्ट से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, वो नोज से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, दे आर सिम्टम्स रिलेटेड टू हेडेक, दे आर सिम्टम्स रिलेटेड टू हर स्टमक, यू नीड टू एग्जामिन द पेशेंट फिजिकली टू सी दैट what exactly is the problem. Now, this physical examination, if any one of you can tell me, what are the three steps of physical examination? When we talk of physical examination, what are the three steps that we basically follow? Anyone has an idea कि हम क्या करते हैं? सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, थर्ड पे क्या करते हैं? There are three steps which we follow in the physical examination. So anyone has an Inspection, idea? and auscultation. Pardon? Inspection, Inspection, palpation, and inspection, palpation, palpation, and auscultation. This is with auscultation. regards to chest. But in general, we do the inspection, we do the palpation and the auscultation with regards to every organ that we are talking of. So auscultation, stomach में auscultation हम check करते हैं. There we do the palpation also. At times you don't need an auscultation, and with the palpation you are able to diagnose कि क्या issue है. But we need to follow these three steps when we do a physical examination. If it comes to sinuses, suppose the patient is coming to you with a problem of blocked nose. If the patient is coming to you with a problem of blocked nose, headache, lots of discharge, येलो ग्रीन डिस्चार्ज आ रहा है, बहुत ज्यादा हेडेक्स होते हैं, उसका नाक बंद रहता है, छींकें आती हैं, तो उस केस में भी यही चीज अल्टीमेटली फॉलो होगी. इंस्पेक्शन में आप क्या देखेंगे? व्हाट आर गोइंग टू इंस्पेक्ट इन अ केस ऑफ कोल्ड विच इज कमिंग टू यू? What are you going to basically inspect in a case of cold that is coming to you? Any idea anyone has? बी इंटरैक्टिव, प्लीज स्पीक. गलत भी बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई नो मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट इट, बट हम बोलने से हिचकिचाते हैं. व्हाट इज इट जो आप सबसे पहले, सपोज अगर आपके पास पेशेंट आके बोलता है मुझे जुकाम रहता है, मेरे को छींकें आती हैं, मेरा नाक बंद रहता है, मेरे को बलगम आता है, मेरे को हेडेक होता है. ठीक है, हेडेक कभी भी जब भी जुकाम होता है हेडेक शुरू हो जाता है. आई नीड टू पुट इन सम ड्रॉप्स जिससे अल्टीमेटली मेरा नाक खोले. तो आप इंस्पेक्शन में सबसे पहले क्या देखेंगे? यस आदित्य, क्या देखेंगे आप सबसे पहले इंस्पेक्शन में? जैसे उसके अगर हेडेक भी हो रहा है पेशेंट के, तो सर वो अपना हेड भी पकड़ के रखता है, या फिर उसके That नोज is your के। observation. That is your observation. What is the अच्छा। inspection part in this? सबसे पहले क्या देखोगे? जिस आपको वही चीज देखनी है, जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है सबसे पहले वो देखेंगे. कौन सा ऑर्गन है जिसमें प्रॉब्लम है? नोज के, उसमें तो साइनस के। सबसे पहले आप, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी साइनसेस फ्रॉम देयर. सबसे पहले आप नोज देखेंगे. नोज देखने के बाद आप उसकी पैल्पेशन करेंगे. जब आप पैल्पेट करेंगे, दैट्स द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू सी द साइनसेस. That's how the sinuses is going to come to your wo, because there is a specific way of doing that. Once you press those sinuses, there's a slight pain in the sinuses. The nose is blocked, तो हम नाक उसका बंद करवा के एक साइड से सांस लेते हैं. टॉर्च से हम इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद हम उसको पैल्पेट करते हैं टू सी कि आपको इंस्पेक्शन में पता चलेगा कि पेशेंट को डीएनएस का प्रॉब्लम तो नहीं है. आप जब पैल्पेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके साइनसेस टेंडर तो नहीं है. अगर वो टेंडर है एरिया, तो साइनसेस के टेंडर होने का जो डायग्नोसिस है वो अलग होता है कंपेयर टू नॉर्मल साइनसाइटिस. देयर माइट बी अ चांस दैट साइनस का पॉलिप हो जिसकी वजह से उसको टेंडरनेस है. आप हिस्ट्री ले रहे हैं, पेशेंट अगर बोल रहा है कि मुझे ब्लीडिंग होता है बीच में, तो देयर इज अ चांस दैट ही हैज अ प्रॉब्लम ऑफ पॉलिप विच इज देयर. अगेन ऑन इंस्पेक्शन यू विल बी एबल टू सी दी पॉलिप. एंड ऑस्कल्टेशन में हम क्या चेक करेंगे? हाउ विल यू ऑस्कल्टेट दिस पेशेंट जिसको हेडेक्स और कोल्ड का प्रॉब्लम है? क्या चेक किया जाएगा बेसिकली? स्टेथो लगा के कुछ देखोगे या कैसे देखोगे? Auscultation में you need to check that whether the patient is breathing from the nose or from the mouth. So for that you need to use the stethoscope. So your physical examination plays an important part in coming to a clinical diagnosis. एंड लास्ट इज द लैब इन्वेस्टिगेशन, जो भी उससे रिलेटेड है. आप कोलेस्ट्रॉल का चेक कर रहे हो, थायराइड का चेक कर रहे हो, डायबिटीज का चेक कर रहे हो, अगर कोई फीवर का प्रॉब्लम है तो सीबीसी चेक कर रहे हो, तो वो आपकी लैब इन्वेस्टिगेशंस आती हैं विच आर गोइंग टू बेसिकली फाइनली लेट यू डिसाइड कि इस पेशेंट को बीमारी कौन सी है.
तो अगर आपके पास एक पेशेंट हेडेक का आ रहा है, ओके, लेट्स कम डाउन टू दिस पॉइंट, हेडेक, कोल्ड एंड इन सारी चीजों में पेशेंट को आपने एग्जामिन किया, आपने उसको देखा, उसका हिस्ट्री लिया, व्हाट लैब इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग टू बी रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट ऑफ साइनोसाइटिस? व्हाट डू यू नॉर्मली, आपको कैसे पता चलेगा कि साइनोसाइटिस का केस है? आप नॉर्मली लैब इन्वेस्टिगेशंस में क्या एडवाइस करेंगे, क्या चेक करना चाहेंगे? Anyone has idea what you would like to check in lab diagnosis, in lab investigation, sorry? What do you expect? क्या X-ray, PNS, एक्सरे, water view. वाटर्स व्यू, पीएनएस, गुड, एंड ब्लड टेस्ट में क्या आएगा? एनीथिंग यू कैन डू फॉर अ ब्लड टेस्ट, वहां से कुछ पता चलेगा? In इन्फेक्शंस blood का, test, we can यूसिनोफिल्स go और for न्यूट्रोफिल्स को देख यूजिनोफिल्स सकते eosinophils. एंड क्या चीज बड़ी मिलेगी यूजिनोफिल्स के अलावा? क्या और चीज आप एक्सपेक्ट? CRP and ESR. CRP, ESR, okay, in some cases you have that. ESR can be raised, CRP इतनी जल्दी साइनस में रेज नहीं होता। बट आपको सीबीसी की रिपोर्ट में क्या मिलेगा? इओजिनोफिल्स आपने बोला, ठीक है, करेक्ट, बिकॉज वो एलर्जी को इंडिकेट करता है। व्हाट इज द अदर फैक्टर विच यू कैन फाइंड इज एलिवेटेड इफ द पेशेंट इज कमिंग टू यू विद एन, स्पेशली इफ इज कमिंग विद एन अक्यूट अटैक ऑफ साइनोसाइटिस टू यू? आपके पास तो वो तभी आएगा जब उसको अक्यूट दिक्कत आएगी। क्या लगता है क्या बड़ा होना चाहिए? नॉर्मली यू हैव द न्यूट्रोफिल्स विच आर इंक्रीज बिकॉज इट इज बेसिकली the one parameter which fights the bacterial infection. So sinus patients usually have a bacterial infection underlying, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिलिक काउंट और यूजोनोफिलिक काउंट आपको बढ़ी हुई मिलेगी। और लिम्फोसाइट्स का क्या होगा? यूजुअली आप क्या देखेंगे लिम्फोसाइट्स में? What happens when there is an infection in the body? What happens to lymphocytes? What happens to lymphocytes if there is an infection in the body? रेज्ड मिलेगा सर लेवल्स। रेज मिलेगा, क्यों? डिक्रीज मिलेगा, lymphocytes का लेवल डिक्रीज मिलेगा बिकॉज दे आर फाइटिंग, दे आर द एक्चुअल फाइटिंग सेल्स which are fighting. So the lymphocytes reduce, the neutrophils increase, the eosinophils increase, you can have that absolute eosinophilic count, वो बड़ी मिल सकती है, ESR आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है, which will be indicative कि पेशेंट को इन्फेक्शन है। एंड मे बी द पेशेंट इज कमिंग टू यू इन अ स्टेट ऑफ अक्यूट साइनोसाइटिस। अगर वो क्रॉनिक में, हो सकता है ये चीजें आपको बढ़ी हुई ना मिले, बट आपके पास जो चीजें हैं वो बेसिकली आपको बढ़ी हुई ना मिले और आपको नॉर्मल रिपोर्ट मिले, लेकिन जब पेशेंट को अक्यूट अटैक हुआ है उस टाइम पे उसको दिक्कत है। सेकेंड चीज, जैसा एक डॉक्टर ने बोला कि हम उनका एक्सरे चेक करेंगे, वाटर्स व्यू फॉर पीएनएस, ठीक है। एंड व्हाट यू नीड टू सी, हाउ यू नीड टू सी, दैट्स अ कंप्लीट सेपरेट थिंग, बट आपको उसमें डीएनएस दिखेगा, आपको उसमें साइनस का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, कौन सा साइनस है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल दैट हाउ यू आर गोइंग टू कम टू अ क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ दिस थिंग। सो फर्स्ट पार्ट इज कि हमें वो जब डायग्नोसिस पे आना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास सिम्टम्स हमारे किस चीज के लिए हैं। दूसरा, हमें उसका डिफरेंशियल पता होना चाहिए। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये एक साइनोसाइटिस का केस है, बट why it is not a case of adenoids, why it is not a case of allergic rhinitis, this also needs to be how you are going to the DD for that. Now let's talk of only sinusitis. आपको कैसे पता चलेगा कि ये एडेनॉइड्स का केस नहीं है और ये एलर्जिक राइनाइटिस का केस नहीं है, पर साइनोसाइटिस का केस है? सो देयर यू नीड टू कंपेयर the symptoms, how long the symptoms have been there, and what symptoms are there. If it is only sneezing with runny nose and itching in the eyes and throat, it is allergic rhinitis. If it is with thick phlegm formation, green yellow bulgum, fever, headaches, it is sinusitis. If it is something where the age group is such that he is a child, so you can definitely think of adenoids, because आपको normally sinuses जो है वो 11-12 ईयर्स की एज तक साइनसिस की फॉर्मेशन नहीं होती है। सो यू कांट टेल अ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स कि इस बच्चे को साइनोसाइटिस है। This is what you need to know. This is going to only come to you once you know about the disease that you are talking of. If you have a child of 5-6 years of age and he has the symptoms, normally आपको एडेनॉइड्स और साइनस के एक जैसे सिम्टम्स ही मिलते हैं। जुकाम होगा, खांसी होगी, बलगम होगा, फीवर होगा, ये सब चीजें मिलेंगी। बट यू नो दैट द साइनसेस डोंट डेवलप इन अ चाइल्ड टिल ही इज 10 or 11 years of age. So you will not get sinusitis in a child of 5-6 years. There a chance of getting adenoids is very common. There a chance of getting some underlying illness like वो आप अगर chest auscultate कर रहे हैं तो आपको bronchitis या asthma मिलने के chances भी हो सकते हैं, again depending on the symptoms, अगर आपको वो symptoms दे रहा है। Because every breathlessness is not asthma, every cold is not allergic rhinitis. So you need to understand that ultimately किस तरीके की प्रॉब्लम पेशेंट को है। आपका वो क्लिनिकल डायग्नोसिस, आपका वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस,
मैटर करता है टू डायग्नोज द डिजीज, बट द क्वेश्चन इज व्हाई टू डायग्नोज, वी आर होम्योपैथ्स, व्हाई वी शुड डायग्नोज। सो दैट्स द बेसिक क्वेश्चन कि हमें करना क्यों है डायग्नोसिस, क्या होगा उससे, व्हाट डू यू पीपल थिंक। वैसे तो आई हैव एनलिस्टेड द थिंग्स, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड क्या रीजन है डायग्नोसिस करने का और क्या नुकसान होगा अगर हम डायग्नोसिस नहीं करेंगे। एनीवन, एनीवन? Diagnosis help us to understand the progression of disease, and if we know the diagnosis and we provide a particular medicine, and the patient came for the follow-up, then we came to know that is this disease is curing or it is getting complicated to chronic state. Good. So basically, the first idea of getting a diagnosis done is that, like you rightly said, that we need to have a follow-up. So हमें पता होना चाहिए हमें देखना क्या है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें कंपेयर क्या करना है, पेशेंट केम विद अ सेट ऑफ सिम्टम्स टू यू, आप उन सेट ऑफ सिम्टम्स को ही आगे कंपेयर करेंगे। सो देयर इज अ प्रोटोकॉल्ड वे ऑफ डूइंग द फॉलोअप ऑफ द पेशेंट, वेर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट का जो प्रोटोकॉल है, कि अगर उसको सोरियासिस है तो उसको इचिंग, स्केलिंग, रेडनेस, फ्लेक का थिकनेस, उसके अंदर जॉइंट्स का पेन, उसका टेम्परेचर, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। तो यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स जिसके बेसिस पे आप उसका फॉलो अप लोगे। सो दैट इज वन पार्ट वेयर देर इज अ बेटर केस मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग कैन बी डन, स्पेशली द रिकॉर्ड कीपिंग, टू मेक श्योर कि हमारा ये पेशेंट बेटर हो रहा है या हमारा ये पेशेंट वर्स हो रहा है या वो एसक्यू है। तो ये चीज एक आपका पार्ट हो गया। उससे भी पहले आपको डायग्नोसिस की जरूरत किस लिए पड़ती है? द फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द डिजीज। नेचर ऑफ द डिजीज मीन्स, what do you mean by nature of the disease? When we talk of nature of the disease, I am not talking in terms of miasms, I am talking in terms of a practice of medicine for sort of a thing, कि अगर आपको nature of disease understand करनी है, you basically try to understand that what is the problem and how difficult is this problem, what are the basic issues with this problem, कि अगर इसको ठीक नहीं किया जाएगा तो क्या दिक्कत आ सकती है। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ fatal the problem is, how important the problem is, how much it needs to be taken care of, because the patient needs to be told this thing कि आपकी ये प्रॉब्लम क्या है और आपको इसको ठीक क्यों करना है। पेशेंट अगर सी वी हैव ऑलवेज रेड कि जब एक पेशेंट को एक सिम्टम्स बहुत लंबे टाइम से चल रहे होते हैं, उसको लगता है ठीक है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, ही गेट्स यूज्ड टू इट। यू नीड टू मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड दैट ये डिजीज को ठीक करने की जरूरत क्या है। बिना डराए उसको आपको ये बताना जरूरी है दैट दिस डिजीज नीड्स टू बी ट्रीटेड, बिकॉज इफ वी आर नॉट ट्रीटिंग इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पेशेंट एलर्जिक राइनाइटिस का आता है, पेशेंट आपको ये बोलता है कि ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, छींकें लगी हुई हैं, ठीक है, मेरे को चल रहा है, बहुत टाइम से मैं चला रहा हूँ काम। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट यू नीड टू टेल द पेशेंट दैट इस डिजीज का नेचर क्या है, कि अगर उसको वो सप्रेस करेगा तो आगे आने वाले टाइम में उसको क्या दिक्कतें आ सकती हैं। नंबर 2 पॉइंट, डिफरेंशिएशन बिटवीन सिमिलर कंडीशन, लाइक नाउ वी वर टॉकिंग कि आपके जो सिम्टम्स एडेनोइड्स के हैं, जो सिम्टम्स साइनोसाइटिस के हैं, वो एक जैसे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सिम्टम आपको कौन सा पर्टिकुलर डायग्नोसिस अल्टीमेटली है, ताकि आपको ये पता हो कि उनका उनका बेसिकली डिफरेंशियल क्या है। सो यू नीड टू नो दैट द क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है। असेसिंग द प्रोग्नोसिस, एज यू राइटली सेड कि पेशेंट बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो हमारे को देखने के लिए, ये पता करने के लिए कि ये प्रोग्नोसिस इसका ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्रोग्नोसिस मींस कि उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वर्स हो रहा है, वो पता करने के लिए आपके पास क्लिनिकल डायग्नोसिस होना जरूरी है। अगर सोरियासिस के अंदर इचिंग बढ़ती है, अगर सोरियासिस में रेडनेस बढ़ती है, सोरियासिस में फ्लेकिंग बढ़ती है, तो वी नो दैट द केस इज एग्रेवेटिंग। अगर उसमें आपकी इचिंग कम होती है, आपकी रेडनेस कम होती है, आपका फ्लेक पतला होता है, मींस द केस इज ऑन अ बेटर ट्रैक। So ultimately, you should be able to assess the prognosis, for which you need to have a diagnosis. Number 4 is deciding the scope of homeopathic treatment. How many of you believe that everything is curable with homeopathy? Or there is, you know, what do we mean by scope of homeopathic treatment? अगर हम scope की बात करते हैं, तो क्या हम ये मानते हैं कि हम सारी बीमारियां अच्छे से जड़ से सारी की सारी ठीक कर सकते हैं, हर तरह का केस जो है वो ट्रीटेबल है? Any idea? Anyone has your views No. on it? What you people think? क्या समझते हैं आप लोग? होम्योपैथी से हर चीज ट्रीटेबल है, हर चीज बिल्कुल क्योरेबल है, कोई भी आप बीमारी उठा लीजिए, कुछ भी हो जाएगा। So here you need to understand that what is the scope of your treatment. Means you need to make the patient understand
आप क्या ठीक कर सकते हैं और आप क्या ठीक नहीं कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट देर आर नॉट केसेस जहां पर वो ना ठीक होने वाली चीज भी ठीक होती है, हो जाती कभी कभी, लेकिन आपको वो स्कोप पता होना चाहिए। यू हैव अ पेशेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यू नो आप उसकी पेन, उसकी इन्फ्लेमेशन, उसकी स्वेलिंग, उसके स्टेरॉइड्स, उसकी पेन किलर्स को आप कम करवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं, पेशेंट्स पेन फ्री रहते हैं। बट अगर वो पेशेंट आपके पास डिफॉर्मिटीज के साथ आ रहा है, देर इज लेस स्कोप दैट यू विल बी एबल टू चेंज दोज डिफॉर्मिटीज। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन टू इट कि हमारा स्कोप क्या है। आपको वो स्कोप पता, और उसमें there is nothing harm in it because these deformities are, see, if you have a case of osteoarthritis, you know that whatever deformity has come up in the joint will not be again replaced. It is not it, that joint which is basically crooked is not going to come back into its normal shape with the medicine. But what is going to happen, patient will have a pain free time, patient is not going to have any progression of the disease, patient is not going to develop any complication of the disease, एंड अगर उसको बिना पेन किलर खाए आपकी होम्योपैथी दवाई से आराम आ रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई उसको साइड इफेक्ट नहीं आएगा। उतना ही अगर वो एंटी इंफ्लेमेटरी खाएगा, उतना ही अगर वो स्टेरॉइड्स खाएगा, तो उसकी किडनी, उसका लिवर, सब कुछ अफेक्ट होगा। कहीं ना कहीं उसके लिए भी दवाइयां खानी पड़ेंगी। द स्कोप ऑफ द ट्रीटमेंट हैज टू बी क्लियर। नंबर 5 is preventing complications. Have you people seen any cases of diabetes and thyroid being treated with homeopathy? देखें आप लोगों ने केसेस कहीं ओपीडी में, या आपने खुद ट्रीट किया हो? आई एम मेंशनिंग दिस बिकॉज ऑफ सम स्पेशल रीजन। एनीवन हैज सीन cases of diagnosis and thyroid being treated? Say yes or no. नो सर। Not seen even a single case. What happens in these cases? I'm no doubt diabetes and thyroid can be taken care of with homeopathy. पेशेंट ये पूछता है कि मैं जब डायबिटीज की दवाई ऑलरेडी खा रहा हूं, मैं होम्योपैथी क्यों खाऊं? क्या आंसर देंगे आप इस चीज का? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? ऑलरेडी वो एलोपैथी खा रहा है, उससे उसके शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ रहे हैं, क्यों होम्योपैथी ले? होम्योपैथी ऐसा क्या करेगी डायबिटीज में जो एलोपैथी नहीं कर रही है? सो हेयर यू नीड टू मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड okay, homeopathy is going to control the symptoms and the complications of diabetes. So that is where homeopathy will come into play. Your medicines are not going to reduce the sugar levels immediately because you are not giving artificial insulin, बट इट विल अल्टीमेटली टेक केयर कि आपको जो सिम्टम, जो दर्दें, जो आपको डिप्रेशन, जो आपको प्रॉब्लम्स, भूख ना लगना, एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाना, जो भी आपको प्रॉब्लम्स, यूरिन के इश्यूज आना, यूरिन में इन्फेक्शंस होना, ये सारी चीजें आपकी कंट्रोल में आएंगी इफ यू आर टेकिंग होम्योपैथी, बिकॉज सिम्टम्स विल बी अंडर कंट्रोल एंड इट विल प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, जहां पर ऑर्गन फेलियर जो दूसरे तरीके के होते हैं वो अल्टीमेटली नहीं होंगे। And definitely over a period of time, your sugar levels start coming under control. Even the thyroid levels start coming down to normal. Patient का weight कंट्रोल होना शुरू होता है, पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल होता है। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है, अगर उसको ड्राइनेस ऑफ स्किन है, अगर उसको इचिंग है किसी तरीके की, कोई और अंडरलाइंग एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है थायराइड के साथ, वो ठीक होगा एंड धीरे धीरे उसके लेवल्स कंट्रोल में आएंगे ताकि वो दवाई को भी कम कर सके। सो इट प्रिवेंट्स द कॉम्प्लिकेशंस। सो अल्टीमेटली फॉर प्रिवेंटिंग दोज कॉम्प्लिकेशंस आपको पता होना चाहिए कि आप किस डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको डिजीज का पता है तभी आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को समझा पाएंगे। साइंटिफिक एंड एथिकल प्रैक्टिस, टुडेज वर्ल्ड इज वेयर आप 15 से 20 हजार डिजीजेस को डील कर रहे हैं, पेशेंट सिर्फ एक डिजीज को डील कर रहा है जो उसको है। ही नोज मोर, he googles a lot of things, he comes with lots of information. So you have to be very scientific and ethical in your practice to document your practice कि देखो हमने ये रिजल्ट दिया है। अल्टीमेटली आप, हमारे साथ प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम अपने रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। अगर हमने फर्स्ट स्टेज में हमारा पेशेंट आया हमारे पास सोरियासिस का, हम फर्स्ट डे उसकी फोटोज क्लिक नहीं करते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल देते हैं, 15 से 20 दिन, 3 हफ्ते के बाद पेशेंट आता है, पेशेंट बेटर होना शुरू हो जाता है, हमारे पास उसकी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स ही नहीं होती हैं। उस एथिकल प्रैक्टिस के लिए, और उसमें आपको डायग्नोसिस अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपल आज की डेट में अगर हम देखें तो इवन इवन इन अंडर होम्योपैथी यू नीड टू फॉलो द द ISD सिस्टम वेयर यू नीड टू लेबल दैट डिजीज सो दैट यू आर एबल टू टेल कि आपने इस डिजीज के अंदर क्या चेंज किया। तो उसके लिए एक साइंटिफिक प्रैक्टिस के लिए आपको इसकी जरूरत है। देन वन ऑफ यू डॉक्टर सेड दैट अल्टीमेटली आपको फॉलोअप के लिए पता होना चाहिए कि आप किन सिम्टम से डील कर रहे हो, तो आपको डायग्नोसिस की जरूरत है। उससे भी ज्यादा जरूरी और क्या चीज है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि ये सोरियासिस है, तो आप उसको मैनेजमेंट कैसे एडवाइस करेंगे? लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स गेट कंफ्यूज इन सोरियासिस, ड्राई एक्जिमा, एक्जिमा, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, देयर इज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज अल्टीमेटली कई बार स्किन एक जैसा दिखता है। तो अगर आपको पता ही नहीं है
पेशेंट को सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, आपने उसको ऑयल एप्लीकेशन दे दिया, उसका सेबोरिक डर्मेटाइटिस बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपने उसको डायग्नोज नहीं किया। पेशेंट को स्कैल्प में सोरियासिस था, लेकिन आपने उसको सेबोरिक बनाकर ऑयल लगाना बंद करवा दिया, तो पेशेंट का सोरियासिस बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो यू शुड नो कि उस केस को मैनेज कैसे करना है। थायराइड का केस है, आपको नहीं पता है कि केस मैनेजमेंट, आपने नहीं ध्यान दिया कि थायराइड की मैनेजमेंट आपको क्या देनी चाहिए। पेशेंट सोया प्रोटीन्स खा रहा है, हाई प्रोटीन डाइट खा रहा है, थायराइड कभी कंट्रोल में नहीं आएगा। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर फॉर अ बेटर केस मैनेजमेंट कि उस पर्टिकुलर केस के अंदर डायग्नोसिस आपका क्या है। क्लियर टू एवरीवन? Anyone has any questions till this time from this slide? Anything you want to ask? चलिए, questions we'll take up in the end. अगर if anyone has it, please write it down. Now, the next thing that we are going to take, so आपने एक क्लिनिकल डायग्नोसिस कर लिया, आपने पेशेंट के सिम्टम्स लिख लिया, आपने उस पेशेंट को बता दिया कि भाई तेरे को हाइपोथायरॉयडिज्म है, या आपको एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, या आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, आपको सोरियासिस है, ये चीज आपको पता चल गई। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट वेयर यू टेक अ केस। नाउ हेयर द केस, व्हाट आई मीन, फर्स्ट वाज द क्लिनिकल केस जहां पर आपने उनके सिम्टम्स, उसकी डायग्नोसिस पे काम किया। नाउ वी कम डाउन टू द होम्योपैथिक केस टेकिंग वेयर यू विल डिग डीप इनटू द सिम्टम्स, यू विल ट्राई टू असर्टेन कि ये सिम्टम्स कैसे शुरू हुए, किस तरीके से शुरू हुए, क्या प्रॉब्लम्स रही, जो भी हम अपनी केस टेकिंग में करते हैं। बट यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग दैट केस टेकिंग। केस टेकिंग is the most important part in homeopathy. So ultimately the first thing that you need to understand is कि अगर आपको एक अच्छा क्योर देना है तो एक अच्छा केस लेना आना बहुत जरूरी है। एंड माई एडवाइस टू यू पीपल इज, ऑर्गेनॉन में केस टेकिंग से रिलेटेड जितने भी अफोरिज्म्स लिखे गए हैं, प्लीज गो थ्रू देम। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, यू विल बी एबल टू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि केस टेकिंग किस तरीके से की जाती है। सो यू नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि केस तो हम ले रहे हैं, हम लिख रहे हैं, लेकिन हम उस केस में से कुछ निकाल नहीं पाते हैं। हम लिखते हैं, वी फिल पेजेस एंड पेजेस ऑफ केस टेकिंग, बट फाइनली जब हम उसमें रेपेटाइज करना शुरू करते हैं तो हमें कोई सिम्टम नहीं मिलता, हमें कोई रूब्रिक नहीं मिलता कि हम यहाँ पे क्या डालें। तो आपको उस चीज की तरफ ध्यान देना जरूरी है कि केस टेकिंग आप किस तरीके से, क्या पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। हेयर आई एम ओनली गोइंग टू गिव यू स्मॉल स्मॉल टिप्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन डू इन अ डिटेल केस टेकिंग। केस टेकिंग इज अ बिग टॉपिक वेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, बट मेजर मेजर चीजें अगर आप वो ध्यान में रखते हैं तो आप अल्टीमेटली केस एक अच्छा लिख पाएंगे जिसमें से आपको कुछ रूब्रिक्स मिल पाएंगे। सो व्हाट हैपेंस इज देयर आर ओनली 10 रूल्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इन केस ऑफ केस टेकिंग। The first rule says listen more, talk less. There is a research which by Harvard which says that normally every human being or every doctor also, if we say, we have a habit of interrupting an ongoing speech of any patient when the symptoms are being given in less than 18 seconds. We basically try to इंटरप्ट बिफोर 18 सेकेंड्स आर ओवर। तो ये एक एवरेज टाइम है जो देखा गया है कि अल्टीमेटली हम 18 सेकंड से पहले ही ना इंटरफेयर कर देते हैं, और किसी बात को अगर पेशेंट कर रहा है तो अल्टीमेटली हमारे अंदर से एक अजीब सी वो उठती है कि बिफोर 18 सेकंड्स आर ओवर वी आर गोइंग टू इंटरप्ट। डोंट डू दैट। When the patient is basically narrating you the symptoms, listen more and talk less. It doesn't mean that you are not supposed to talk, because if you will not talk, the patient will jump from one idea to another. He will start talking of things which are unrelated to the case. So you need to bring that patient back to that topic. But जब वो आपको अपना symptom दे रहा है, ध्यान से आपको उसको सुनना है, आपको उसका बोलना नहीं है बीच में, उसको आराम से सुनते रहिए और उसके बाद आप उससे बात करेंगे कि अल्टीमेटली जहां पर सपोज, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, पेशेंट इज सेइंग कि मुझे हेडेक होता है, ठीक है, मेरे को राइट साइड पे हेडेक होता है, मेरा पेन जो है वो हल्का हल्का शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, उसके बाद वो जाता जाता सारे सिर में राइट साइड से शुरू होकर पूरे सिर में फैलता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अभी पेशेंट आपको सिम्टम दे रहा है। अब हमारे दिमाग में क्या आता है, कैसा पेन है, कब शुरू हुआ, किस चीज से शुरू हुआ, किस चीज से कम हुआ, ये क्वेश्चंस आप नहीं बोलेंगे। You let the patient talk and tell all those symptoms. So you will write down the headache, you will write down the type of pain, which area is getting involved, how it is starting, where it is going. You will write everything down, and then you are going to find the missing links once the patient has stopped talking. The second part is record the patient's own words. Now this is something which is very very debatable, क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि record the patient's own words का मतलब, when Dr. Hahnemann said, he didn't mean that you are supposed to write what exactly the patient is basically talking about. What he means about is it,
You need to avoid medical terminology when writing about the disease. अब सपोज पेशेंट ने आपको जो हेडेक के बारे में बताया वो आपको लिखना है एग्जैक्टली जैसे पेशेंट बता रहा है. The headache starts from the right side, settles in the whole head, and the patient feels as if a lot of hammers are being put down in the हेड. और पेशेंट आपको ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे लगता है डॉक्टर साहब ऐसे टक 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 यहाँ पे ना टेम्पल में ऐसे टक 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 हो रही है, तो हम उसको क्या लिखते हैं? द पेशेंट सेज दैट द हेडेक इज बेसिकली throbbing. No, you are not supposed to write it is throbbing. You will write that the patient is reporting that the headache is in the form of it is basically in the form where it is coming and going like it is a pulsating sort of or in the form of pulses. कई बार अगर आपने बेलेडोना का हेडेक देखा, व्हाट इट इज, वो पल्स के साथ हेडेक होता है. पल्स चलती है, यहाँ पे ठक होती है, पल्स चलती है, वहां पे ठक होती है. सो एज इफ द इट इज गोइंग अलोंग विद द पल्सेस और द पेशेंट इज फीलिंग कि वहां पे कोई आपको किसी तरीके का वहां पर प्रेशर आ रहा है या किसी तरीके का वहां पर बैंगिंग की जा रही है जिसकी वजह से अल्टीमेटली वहां पे दर्द हो रही है. When you will take the rubric, definitely you will talk of that it was a throbbing headache. बट अगर आपने वहां थ्रॉबिंग लिखा, यू आर बाउंड टू से कि अच्छा ये थ्रॉबिंग हेडेक है, आप उसको थ्रॉबिंग को उसकी पिक्चर ही बेलाडोना की बनानी शुरू कर देंगे. सो यू नीड टू रिकॉर्ड इट इन द पेशेंट. पेशेंट इज कंप्लेनिंग दैट मुझे दर्द होता है पेट में, द पेन स्टार्ट्स, और वो दर्द खाना खाने के डॉक्टर साहब 1 घंटे के बाद दर्द शुरू हो जाती है. इतनी जोर से दर्द होती है कि मेरे से बिल्कुल ना तो बैठा जाता है ना मेरे से उठा जाता है. हम क्या लिखेंगे? द पेशेंट हैज colicky pain. Don't write he has colicky pain. Write down the patient has pain when he starts after about 45 minutes or 1 hour of taking food or after food. The pain is very severe. The patient needs to bend or has to sit down or has to lie down, whatever he is telling you. Colicky pain is the diagnosis that the type of pain is basically the colicky pain. तो आपको उसको उसी वर्ड्स में उसको रिकॉर्ड करना होता है. देन वी कम डाउन टू अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस. लीडिंग क्वेश्चंस के ऊपर व्हाट वी बेसिकली से कि आपको पेशेंट के साथ ये नहीं पूछना, अच्छा मैम आपको ये भी होता है, अच्छा मैम आपको ये, यू डोंट हैव टू सजेस्ट आंसर्स टू द पेशेंट. बिकॉज हमारे दिमाग में जब वो पेशेंट क्वेश्चन अपना सिम्टम देना शुरू करता है तो हमारे दिमाग में ये चलता है अच्छा ये होता है तो ये भी होता है. मैम ये दर्द आपका धूप से बढ़ जाता है? नो, लेट द पेशेंट टेल कि मेरा पेन धूप से बढ़ता है. हाँ, अगर वो नहीं बोलता है देन एट द एंड ऑफ द केस टेकिंग यू आर गोइंग टू आस्क कि मैम आप बताइए किन चीजों से हेडेक बढ़ता है. इंस्टेड ऑफ आस्किंग दैट मैम धूप से बढ़ता है हेडेक, नो, यू विल आस्क किस चीज से मैम हेडेक आपका बढ़ता है, क्या चीज आपने नोट करी है कि आपका हेडेक बढ़ जाता है. जैसे हम कई बार पेशेंट को क्या पूछते हैं कि अच्छा ठीक है आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप दवाई नहीं खाओगे तो और क्या ऐसी चीज है दवाई के अलावा जिससे आपको आराम आएगा. तो पेशेंट कहेगा अगर मैं दवाई नहीं खाता तो मेरा मन करता है मैं टाइट करके पेशेंट कि मैं अपने सिर को बांध लूं और बड़े जोर से बांध के अंधेरा करके मैं सो जाऊं. तो आपको वहां पे एक सिम्टम मिलता है दैट पेशेंट इज बेटर बाय बैंडेजिंग, द पेशेंट इज बेटर बाय लाइंग इन द डार्क. बट अगर आप पेशेंट को सजेस्ट करोगे तो पेशेंट का आंसर यस या नो में आएगा. देयर इज अ परचांस दैट द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू इज नॉट राइट, बिकॉज पेशेंट उसी चीज को यस या नो समझ के आपको वो बोल देगा, तो वो आपने नहीं करना है. सो दो लीडिंग क्वेश्चन, एवरीथिंग इज मेंशन्ड एरोगनॉन. आई नो यू पीपल ऑल हैव बेसिकली रेड इट, ठीक है, आप लोग लिख कर भी आए होगे अपने एग्जाम्स में. नाउ द पॉइंट इज कि उसको अप्लाई कैसे करना है, क्या चीज आपने अल्टीमेटली पेशेंट को बोलनी है, क्या चीज आपने पेशेंट को नहीं बोलनी है. दिस यू शुड नो. पेशेंट के मुंह में आपको वर्ड्स नहीं डालने हैं. इफ यू वांट टू आस्क अ लीडिंग क्वेश्चन, सी इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से, you are not supposed to ask questions which have an answer as a yes or a no, but you will ask questions which has an explanatory answer. ठीक है मैम, पेट में आपके गैस बनती है, गैस में आपको आराम कैसे आता है? जब वो पास होती है तब आता है, मुझे डकार आते हैं तब उससे मेरे को ठीक होता है, मेरे को जब दिक्कत होती है तो मैं उस टाइम कोई ठंडा दूध पी लूँ तो मुझे ठीक होता है. तो पेशेंट को आपको ये पूछना है कि आपको आराम आता कैसे है, बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है. ये नहीं पूछना है कि आप दूध पीते हो तो आराम आता है. क्या पता पेशेंट पीता ही ना हो, उसको पता ही ना हो कि मेरे को दूध पीने से आराम आएगा कि नहीं आएगा. लेट द पेशेंट स्पीक. The fourth point is you need to observe the patient carefully. This is something which comes with practice. So somewhere or the other, हम यहाँ पर बहुत लैक करते हैं. आप जैसे जैसे प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाएंगे यू विल बी एबल टू सी. ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि पेशेंट आपको जब एक जेस्चर किसी एक मीटिंग में दे रहा है तो वही उसका जेस्चर बनेगा, वही उसका ऑब्जर्वेशन होगा. ठीक है, यू नीड टू सी दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ द पेशेंट, बट येस देयर कैन बी सर्टेन जेस्चर्स जो आपको बार बार नजर आएंगे. जैसे यू माइट हैव अ पेशेंट गिविंग यू अ केस एंड केस देते देते वो अपने आंख फिंगर्स के साथ ऐसे 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 किए जा रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये उसका
फिजिटी नेचर है, वी नो दैट, बट यू नीड टू कंफर्म कि मैम अभी आप ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो आप यूजुअली अगर बैठे होते हैं तो आप ऐसे, तो वो पेशेंट आपको बोलेगा नहीं, जब मैं थोड़ा स्ट्रेस में होती हूँ, जब मेरे को लगता है कि मैं कहीं पे किसी से बात कर रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस उस तरीके का नहीं होता, तो मैं करता हूँ। तो यू विल गेट द सिम्टम दैट कॉन्फिडेंस want off. So maybe there is a lack of confidence because of which the patient is having this, or there is an anxiety which is anticipatory, stage fright है, stage fear है, लोगों से बात करने का डर है, वो हो सकता है। But that doesn't mean that he is, basically कि हम वो gesture ले रहे हैं, but क्योंकि वो patient ऐसे ऐसे कर रहा है तो fidgety ही होगा, ये जरूरी नहीं है। So you need to confirm कि वो पर्टिकुलर gesture किस, हाँ ऑब्जर्व करिए, बाद में पेशेंट से बात करिए कि ये मैंने ऑब्जर्व किया, तो आप मुझे बताइए कि ये किस वजह से आप करते हैं, आप हमेशा करते हैं। जैसे एट टाइम्स, अब हैव यू पीपल एवर सीन कि आपको कैसे पता चलेगा पेशेंट नेल बाइटिंग करता है? कभी देखा है किसी ने नेल बाइटिंग वालों के नाखून? इफ एनीवन हैज एवर नोटिस्ड, आप पेशेंट का किस लेते लेते सिर्फ उसके हाथ देख के बता सकते हैं कि नेल बाइटिंग करता है। हैज एनीवन सीन कैसे दिखते हैं नेल बाइटिंग वाले नेल्स? एनीवन? यस सर। कैसा दिखेगा? देखा है सर क्या? उसके बहुत बहुत ज्यादा ही अंदर तक अंदर तक ऊपर, हाईवे न्यूज होंगे, ऐसा ठीक। अनइवन नेल्स होते हैं और बहुत ज्यादा डिक्रीज लेवल्स, मतलब नीचे तक होते हैं उनके। नीचे तक होते हैं, तो अल्टीमेटली वो पेशेंट को आपको देख के पता, दैट्स योर ऑब्जर्वेशन विच यू आर गोइंग टू सी कि पेशेंट जो है वो नाखून खाता है। ठीक है, बाकी पेशेंट आपके सामने जो भी कर रहा है, कई बार पेशेंट ब्लिंक ज्यादा कर रहा होता है, कई बार वो कोई पर्टिकुलर जेस्चर दे रहा होता है विच यू कैन ऑब्वियसली ऑब्जर्व, बट यू नीड टू आस्क द पेशेंट why he is doing like that, or he does it every time, or it is only under certain special condition that is being done. Yes, Dr. Bablina, anything you want to ask? नो ठीक, सर। हाँ ठीक है, सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम? व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम का मतलब क्या हुआ? सर जो पेक्यूलियर उसी डिजीज का है या फिर उसी पर्सन का डिजीज सिम्टम आ रहा है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि मतलब आगे हमारे डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, फिर मेडिसिन सिलेक्शन में भी हेल्प होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। इज इट अ कॉमन सिम्टम और एन अनकॉमन सिम्टम? नो सर, It इट्स is an अनकॉमन uncommon सिम्टम। peculiar It's an symptom. uncommon peculiar PQRS symptom which you need to take. So obviously this is an important part because obviously वो PQRS symptom हमारे को medicine पता करने में, but how easy it is for you to diagnose this symptom? आपको लगता है बड़े आराम से पेशेंट का ये symptom आपको मिलेगा? कैसे पता चलेगा कि ये PQRS है कि नहीं है? उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? अगर हमें किसी We डिजीज का, should know the symptom of the disease we should know the symptom first. of the कॉमन Then we will. disease, कॉमन and सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए सर। what else? कॉमन सिम्टम पता होना चाहिए, तभी आप पीक्यूआरएस को वो करोगे। और क्या हो सकता है? और क्या रीजन हो सकता है कि वो पीक्यूआरएस सिम्टम, मतलब उस पीक्यूआरएस सिम्टम को पता करवाने के लिए आपको और किस चीज का पता होना चाहिए? जैसे नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं सर, जो आप एंटिसिपेट करते हो डिजीज में आएंगे बट वो नहीं आ रहे हैं, हाँ, तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बन जाता है। वो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बनता है। सो दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। नाउ पेशेंट कमिंग टू यू फॉर some disease wherein he has been on some steroids for a very long time, ठीक है, मतलब बड़े लंबे टाइम से वो स्टेरॉइड्स खा रहा है। पेशेंट आपके पास रिपोर्ट्स लेकर आता है और उन रिपोर्ट्स के अंदर उसके शुगर लेवल्स हाई आ रहे होते हैं। पेशेंट इज नॉट डायबिटिक बट उसके शुगर लेवल्स हाई आ रहे हैं। सिम्टम कोई नहीं है डायबिटीज का, कुछ नहीं आ रहा है। पेशेंट रोमेटॉइड का है या मे बी एक्सवाइजेड किसी ऐसी इलनेस का है, या स्किन का ही है जिसमें वो हाइड्रोकॉर्टिसोन खा रहा है, वो प्रेडनिसोलोन खा रहा है और बहुत टाइम से वो खा रहा है, और उसका शुगर लेवल हाई आएगा। So will you consider this sugar level high as a characteristic symptom? Will it be considered as a characteristic Yes. symptom Yes, because it's the uncommon symptom. of how it is an uncommon symptom? How it is an uncommon symptom? Any person, Because if he hmm, बोलिए बोलिए। because if he is not diabetic and he has very high level of sugar level, then it is to be considered something Okay, else. मतलब कोई और पैथोलॉजी हो सकती है। okay. Anyone else?
द पेशेंट इज अ केस ऑफ रूमेटॉइड ऑन स्टेरॉइड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपके पास पहली बार आया है और उसके शुगर लेवल्स हाई आ रहे हैं. So as per Dr. Konika, it's a characteristic symptom. Anyone else has any viewpoint different from this or same? Any patient, now अब यहाँ पे हमारे को ये पता होना चाहिए that any patient who is taking steroids for XYZ any problem is bound to have a high sugar level. So this doesn't become a characteristic symptom. You can't take diabetes as one of the symptoms because जब आप स्टेरॉइड, अगर आप भी स्टेरॉइड खाओगे, अगर आप कुछ दिन स्टेरॉइड खाने पड़ते हैं आपको किसी वजह से, आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाएगा. सो अल्टीमेटली आपका स्टेरॉइड की वजह से, सो व्हाट यू आर गोइंग टू एडवाइज द पेशेंट दैट वी विल बी स्टॉपिंग विद द स्टेरॉइड्स. वंस द स्टेरॉइड्स आर स्टॉप्ड और उसके बाद पेशेंट के लेवल स्टिल हाई रहते हैं, देन यू कैन इन्वेस्टिगेट फर्दर फॉर डायबिटीज. बट अगर आपको, क्योंकि अगेन इट इज अ कॉमन सिम्टम कि अगर आप स्टेरॉइड्स खा रहे हैं तो आपका शुगर लेवल हाई जाएगा ही जाएगा. उसका रीजन होता है बिकॉज आपको जब स्टेरॉइड्स खाते हैं तो स्टेरॉइड खाने से भूख ज्यादा लगती है, पेशेंट का वेट भी बढ़ेगा और पेशेंट का शुगर लेवल हाई आने के चांसेस होंगे. पेशेंट खुद ही आपको बोलेगा कि हाँ मेरा वेट कम था, जब से मैं स्टेरॉइड्स खा रही हूँ तब से मेरा वेट जो है वो इंक्रीज हो गया. दैट इज अ कॉमन सिम्टम. सो यू कांट टेक ओबेसिटी एज अ सिम्टम दैट पेशेंट इज हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी. इट्स बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स. The sugar level is because of the steroid. So it doesn't become a characteristic symptom. So this is where ultimately your clinical diagnosis and knowledge about the disease, knowledge about the medicine comes into play कि ultimately आपको पता होना चाहिए किस मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट होता है. बट येस, अगर कोई PQRS सिम्टम है जो नॉर्मली कंडीशन में नहीं होता, ठीक है, अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे सपोज एक पेशेंट ये रिपोर्ट करता है कि मेरे को जब बुखार होता है मेरा मन करता है कि मैं बिल्कुल ठंडा पानी पीऊं, तो दैट बिकम्स अ PQRS सिम्टम कि मेरे को गला खराब है और उसका गला खराब है, उसको फीवर है, फीवर में उसको ठंड लग रही है, ही वांट्स टू कवर बट ही वांट्स कि मेरे को पानी ठंडा चाहिए. तो आप उसको PQRS लेकर जो भी मेडिसिन आती हैं, फॉस्फोरस आती है, ब्राइनिया आती है, कुछ और आता है, जो भी आ सकता है उसमें आपके एज पर द अदर सिम्टम्स यू बेसिकली प्रिस्क्राइब. A patient turning thirstless in fever when he has very high grade fever is a what sort of a symptom? Patient says he is thirstless जब उसको हाई ग्रेड फीवर 103 फीवर एक होता है लेकिन प्यास नहीं लगती बिल्कुल भी. क्या लेंगे हम इसको, कैरेक्टरिस्टिक लेंगे या कॉमन लेंगे? फीवर में प्यास बिल्कुल ना लगना. एनी आइडिया? यू विल कम अक्रॉस दीज पेशेंट्स इन योर OPD. आपको ऑब्वियसली आप उसके बेसिस पर आप प्रिस्क्राइब भी करोगे, वहां पे मेडिसिन चेंज हो जाता है. पेशेंट को फीवर होता है, फीवर में उसको बिल्कुल प्यास नहीं लगती, हीट स्टेज में उसको बिल्कुल प्यास नहीं लगती है. कॉमन सिम्टम है या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है? बताइए. Characteristic. कैरेक्टरिस्टिक, यस. वाई? क्या होना चाहिए? अगर हीट स्टेज है तो हीट स्टेज में प्यास लगनी चाहिए बिकॉज द ज्यादा बॉडी लगनी चाहिए. हीट ज्यादा लगनी चाहिए. अगर नहीं है तो फिर वो एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है. तो नॉर्मली मेडिसिन क्या आती है, बहुत ज्यादा हीट में अगर आपको प्यास नहीं लगती है, हम नॉर्मली थर्स्टलेस रेमेडीज में जाते हैं, पल्सेट्रा में जाते हैं, हम उसमें जाते हैं, आपके ब्राइनिया देते हैं, पल्सेट्ला देते हैं, तो ये रेमेडीज आपकी आती हैं. ऑन दी अदर हैंड पेशेंट कहता है कि मेरी चिली स्टेज है, मुझे ठंड लगती है और उस ठंड के टाइम मेरे को प्यास बहुत लगती है, तो आपकी मेडिसिन चेंज हो जाती हैं. सो यू नीड टू बी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि किस सिम्टम में, किस पर्टिकुलर डिजीज में क्या कॉमन सिम्टम आपको होगा. मलेरिया का केस है, पेशेंट कह रहा है कि उसको बहुत ज्यादा ठंड चढ़ के बुखार लगता है, तो आपके लिए वो अगर मलेरिया का केस है तो आप ये नहीं ले सकते दैट चिल्स बिफोर फीवर और ड्यूरिंग फीवर. यू कांट टेक दैट, दैट्स अ कॉमन सिम्टम. That's a common symptom of malaria. So you can't, if you prescribe on that, you might succeed or you might not succeed. Mostly you don't succeed. So you need to find that characteristic symptom जिसके बेसिस पे आप प्रिस्क्राइब करेंगे. I'm just giving you a very vague example in the acute cases. Although acutes में हम usually जो रेमेडीज हमारी आती हैं हम वही देते हैं क्योंकि वो नॉर्मली फिक्स्ड रेमेडीज भी होती हैं. आप मलेरिया है तो कई बार आपको कुछ भी समझ ना आया, आप नॉर्मल चाइना 200 भी दे दें तो पेशेंट ठीक होता है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जहां पर कुछ पिक्यूलियरिटी आपको मिल रही है वो आपको कैसे ढूंढनी है. मोस्ट ऑफ द पेन्स in osteoarthritis or any sort of arthritis are usually better by warm applications. We know that. Only when the patient says कि ये ठंडे पानी से ठीक होता है तो उसकी रेमेडी होती है एक जो आपको मिलती है, दैट ये रेमेडी, और वो रेमेडी काम करती है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट अगर ये बोलता है कि सुबह जब मैं उठ के खड़ा होता हूँ मेरे को दर्द होती है, फर्स्ट मोशन डिफिकल्ट है, उसके बाद मैं चल पाता हूँ आगे,
तो हम उसके बेसिस पे रस्टॉक्स प्रिस्क्राइब करके उसका रुमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स अ कॉमन सिम्टम ऑफ रुमेटॉइड आर्थराइटिस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है. आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन. यस. Okay. Next, give importance to mental symptoms. Now, this is something which is the most important part of case taking. और यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे को मेंटल सिम्टम्स के नाम पर चाहिए क्या. वॉट वी एग्जैक्टली नीड इन द केस ऑफ मेंटल सिम्टम्स. मेंटल सिम्टम्स अगर आपने पढ़ा हो, मतलब यू मस्ट हैव डन केस टेकिंग के अंदर जब आपको कराते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड. there is a list of certain symptoms कि पहला mental symptom ये important है. I don't exactly remember, we say grade 1 mental symptom, grade 2 mental symptom, इस तरीके से mental symptoms की grades होती हैं. सबसे पहला grade क्या होता है, which is a grade 1 mental symptom that you need to take? Dreams. No, I won't say dreams. Even before that, dreams are in the subconscious. विल. Pardon? विल. Will? वो क्या चाहता है. नहीं. will क्या चाहता है मतलब, फॉर एग्जाम्पल, मतलब यू कैन एक्सप्लेन. जैसे हम केंट के उसमें पढ़ते हैं विल अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्ट. हम्म. तो उस उसमें कि विल का कि वो कैसी चीजें चाहता है ऐसी वो जो होनी आप पढ़ते चाहिए हैं, बट उस. वो जो आप पढ़ते हैं, वो आप ये पढ़ते हैं कि जब हम बीमार होते हैं बेसिकली, अब उसमें क्या होता है कि पेशेंट को आपने मेडिसिन दिया, पेशेंट ये कहता है कि मेरा, पेशेंट जब आपके पास आया उसने आपको बोला कि मेरा काम करने का मन नहीं करता मेरा, तो लेकिन जब आपने मेडिसिन दिया उसका बुखार तो ठीक नहीं हुआ लेकिन उसका काम करने का मन करने लग गया. तो दैट इज वेयर विल कम्स इनटू प्ले, कि द मेडिसिन इज वर्किंग ऑन दैट पार्ट. आई एम आस्किंग यू विच इज द ग्रेड 1 मेंटल सिम्टम दैट यू नीड टू कंसिडर. इसकी है लिस्ट आपके पास, कैंट्स में ही है या कहीं पर हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि आपका ग्रेड 1 मेंटल सिम्टम कौन सा है, ग्रेड 2 कौन सा है. आपको हर केस में हर चीज नहीं मिलेगी. यू माइट हैव सम केसेस जहां पर आपको ग्रेड 1 वाला ना मिले तो वहां पर आपको ग्रेड 2 लेना पड़ेगा. आपको वो ना मिले तो आपको ग्रेड 3 लेना पड़ेगा. बट मेंटल सिम्टम्स का एक ऑर्डर होता है जिसमें उनको लिया जाता है. The first thing that you basically try to find out in a case of a in any case with regards to mental symptom is the cause. क्या लिखा है फर्स्ट पेज ऑफ ऑर्गन, ये आपकी केंट्स लेक्चर में, एवरीथिंग हैज अ कॉज, एवरीथिंग इज देयर फॉर अ रीजन, सो यू ट्राई टू फाइंड एलिमेंट्स फ्रॉम. So the first thing that you try to go for a mental symptom for is ailments from. I hope I am right. So the first thing is ailments from. That's your grade 1 mental symptom that you need to consider. उसके बाद जब आपका कोई एलिमेंट आया, जब जब कोई एक पर्टिकुलर एक्शन आया, मे बी एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ था, मे बी एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक था, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ था किसी का, एलिमेंट्स फ्रॉम फियर था, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू टेक इन अ मेंटल सिम्टम इज द रिएक्शन, वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन. जहां पर बातें आती है कि जो अभी आप बात कर रहे थे कि आपको उसकी वजह से कैसा लगा, क्या आपकी विल रही, क्या आपको फीलिंग आई, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू कंसिडर एज अ सेकंड ग्रेड सिम्टम. जहां पर आप ये पूछते हो कि इस एलिमेंट की वजह से आपके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ. लाइक I recently had a case where she said that she was a case of anxiety neurosis and GERD. She said all my problems started. I had one death in the family of my father. Then it was my grandfather after 1 year. Then of my grandmother. उनकी डेथ से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ. ग्रैंडमदर की डेथ होते ही मेरे सिम्टम्स इंक्रीज होने शुरू हो गए. तो वहां पर अल्टीमेटली ग्रैंड मदर की जो जो एलिमेंट थे वो, हम अगर ये बोलें कि वो डेथ्स, उसने बोला कि एक के बाद दूसरी डेथ होती है, एलिमेंट वन डेथ आफ्टर अनदर में अम्ब्राग्रीजिया एक मेडिसिन आती है. ओके. लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे उनसे नहीं प्रॉब्लम हुई, ग्रैंड मदर से मैं अटैच थी, मेरे को उनकी डेथ से प्रॉब्लम हुई. तो कहाँ से आपका एलिमेंट शुरू हुआ. फिर सेकेंड पार्ट, आपका रिएक्शन क्या था. ठीक है. अब हम क्या पूछते हैं पेशेंट को, आप रोए, आप नहीं रोए, आपको कितना टाइम लगा निकलने में, क्या दिक्कत आई, आप निकल पाए आराम से कि नहीं निकल पाए, उसके बाद आपने क्या चेंजेस नोट किए. तो शी हैड डेवलप दैट एंजाइटी आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर, फीलिंग दैट नाउ देर इज नो वन लेफ्ट टू टेक केयर ऑफ हर. सो दे वी कम टू द पार्ट दैट शी हैड अ forsaken feeling that she was all alone. So she will not be able to handle anything. She is very young. She was around 22, 23 when this happened. So she considered कि मैं तो बिल्कुल अकेली होगी और मेरे को कौन देखेगा, मेरा छोटा भाई भी है, मैं बिल्कुल अकेली हूं. तो वो आपको क्या उससे फीलिंग आई, वो पेशेंट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम बनता है.
उसके बाद आपकी स्टेजेस आती हैं जहां पर पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स से रिलेटेड, उसके कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, कि उसके एंगर्स क्या हैं, फियर्स क्या हैं, ये सारी चीजें आप अल्टीमेटली लेते हैं। तो आपका जो मेंटल सिम्टम है उसमें जाने के लिए इट इज अ वेरी वेरी वाइड थिंग, वेयर कैसे मेंटल सिम्टम्स निकालने हैं पेशेंट के, क्या चीज कंसिडर करनी, वो क्या बोलेगा उससे उसका क्या मतलब निकलेगा, वो चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बट द फर्स्ट थिंग दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू बेसिकली असर्टेन, कि हमें उस एलिमेंट्स फ्रॉम पे पहुंचना है कि किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो नहीं आपको मिलता तो उसकी क्या फीलिंग है, जो आपने विल की बात करी, अंडरस्टैंडिंग की बात करी, वो उसकी फीलिंग क्या है। फिर भी अगर ये चीजें आपको नहीं मिलती हैं, तो किसी भी केस के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, स्पेशली एक फीमेल केस में क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, अगर उसका कोई एलिमेंट फॉर्म नहीं मिल रहा, उसमें आपको केस में कोई और चीज नहीं मिल रही, what another thing is which with which you can start your case, you can take in what we call it as an eliminating symptom ना, we say it is the eliminating symptom। तो आप वो eliminating symptom क्या ले सकते हैं स्पेशली फीमेल्स के केस में? anyone has any idea? आपने पढ़ा है? what is the eliminating symptom you try to take अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा एलिमेंट्स फ्रॉम? यस डॉक्टर कोनिका, एनी आइडिया क्या लेते हैं हम? कुछ आइडिया आप दे सकते हैं? We try to ascertain the mental state, especially before menses, which is another very, very important eliminating symptom that can be used. So it's not that you will get everything everywhere, but अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज नहीं मिल रही तो तीसरी चीज क्या है? Irritability before menses, tiredness before menses, any symptom, mental symptom coming before menses is of very, very great importance. If you want to use it as an eliminating symptom also, you can use it. तो आप वहां पर उसको एज एन एलिमिनेटिंग सिम्टम ले सकते हैं। अगर नहीं भी ले रहे हैं, आपको एलिमेंट्स मिल गया है, आपको उसका इंपैक्ट मिल गया है, तो आप ये वाला सिम्टम भी, अगर वो बहुत मार्क्ड है, अगर आपको ये पता होना चाहिए कि वो मार्क्ड सिम्टम है कि नहीं है। पेशेंट कहता है हाँ होती है, इरिटेबिलिटी थोड़ी बहुत होती है, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होती। एक है कि इतनी होती है कि मेरा मन करता है मेरे आसपास कोई ना आए, मैं उठा के चीजें मारूं और मैं सिर फोड़ दूं किसी का। तो अल्टीमेटली वहां पर आपका एलिमेंट्स फ्रॉम, सॉरी, आपका जो इरिटेबिलिटी है मेंसेस से पहले की, वो मैटर करती है, बिकॉज इट इज अगेन अ सिम्टम विच इज कमिंग विद ग्रेट व्हाट वी कॉल फोर्स। तो अल्टीमेटली उसका इंपॉर्टेंस बनता है। सो यू हैव टू गिव दैट इंपॉर्टेंस टू मेंटल सिम्टम्स इन दैट ऑर्डर। और उसके बाद आते हैं ये सिम्टम जहां पे उसका फियर, उसके एंगर इश्यूज, एंगर है किस बात से है, ऑब्वियसली वो लेने का एक तरीका है जिसके हिसाब से आप लेते हो, लेकिन वो केस टेकिंग में मेजर चीजें जो आपकी हैं, अगर आप ये दो तीन चीजें पेशेंट से असर्टेन करते हो, आप काफी इजिली अपनी राइट रेमेडी के आसपास पहुंच जाओगे। Next is always note modalities. I hope everyone knows about what modalities are. किस चीज से aggravation है, किस चीज से amelioration है। इसमें दो तरह की modalities होती हैं। एक modalities होती हैं general modalities, जनरली पेशेंट किस चीज से बेटर फील करता है, और एक होती है पर्टिकुलर modalities जो उसके पर्टिकुलर सिम्टम से रिलेटेड है, कि अगर उसको पेन है तो वो वार्म से आराम है, कोल्ड से आराम है, कवरिंग से आराम है, किस चीज से आराम है, वो तो हो गया उस पर्टिकुलर सिम्टम से। अगेन द इन दैट यू नीड टू फाइंड आउट द पेक्यूलियर सिम्टम, आई नीड टू टेक दैट। और एक होती है जनरल मोडालिटीज, कि उसको जनरली किन चीजों से आराम आता है, जहां पर अगेन हम वो बोलते हैं कि पेशेंट रिलैक्स और कंफर्टेबल कैसे फील करता है। जैसे अगर हम व्हेन वी टॉक ऑफ मेडोरिनम, मेडोरिनम इज वन सच रेमेडी जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा पसीना आता है। बट हैव यू एवर रेड मेडोरिनम ध्यान से? उसमें क्या लिखा गया है? पेशेंट स्वेट्स अ लॉट, बट व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ perspiration? What happens because of perspiration to the patient? Has anyone read in Medorinum? Patient sweats a lot, but there is something which happens with that perspiration. What? Any idea anyone has? Perspiration cause chills. Pardon? Perspiration cause chills. Cause chills. What else? I have doubt perspiration causes chill in Medorinum. There is a general symptom that is there. There is a generalized modality in that perspiration aggravates the mental symptoms of the patient. The patient gets agitated when he perspires. So we always take perspiration aggravates. So aggravates मतलब उसकी सारी कंप्लेंट्स एग्रेवेट होंगी नॉर्मली। लेकिन क्या होगा कि पसीना आता है ज्यादा, पसीना ज्यादा आने से पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं इतना पसीना आता है डॉक्टर साहब, मेरा मन करता है, मतलब मैं चिड़चिड़ होनी शुरू हो जाती है कि इतना इतना पसीना आता है, उससे मैं परेशान हो जाता हूँ।
और क्या चीज होती है मेडोरिनम में, एक चीज और, एक जनरलिटीज में चीज आती है, व्हाट हैपेंस, इट्स अ मेंटल सिम्टम जिसमें पेशेंट को एक फिजिकल चेंज भी आता है साथ में, और अगर वो उसमें आ रहा है, मेडोरिनम काफी हद तक एक रिकमेंडेड रेमेडी होती है। आई मीन देयर कैन बी अदर रेमेडीज बट यूजुअली यू गेट दिस एज अ रेड लाइन सिम्टम इन मेडोरिनम, that when the patient is angry, he trembles. There is trembling with anger. That is again medorinum. Redness of the ears become heated, and they become red when he is in anger, in agitation. It is actually agitation. तो उस टाइम पे इतना गुस्सा, जब उसको गुस्सा बहुत आता है, वो ट्रेम्बल करता है, he starts trembling. That is where medorinum comes. So these are peculiar mental symptoms जिनसे आपको उन रेमेडीज के बारे में, you might have other remedies in that. It's not that ultimately totality में हो सकता है कुछ और आ रहा हो, लेकिन ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी मोडालिटीज हैं जो इस चीज को पॉइंट आउट करती हैं कि ये रेमेडी इंडिकेटेड हो सकती है, जो बाकी सिम्टम्स के साथ आएगी। देन कम्स दी जनरल सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं? व्हाट आर जनरल सिम्टम्स? हियर व्हेन वी टॉक ऑफ जनरल सिम्टम्स, दीज आर, what are these general symptoms? These are your which generals? Mental symptoms फिजिकल तो जनरल, आपने, हाँ जी, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल तो आपने ले लिए मेंटल्स में, ये आपके फिजिकल जनरल सर। फिजिकल जनरल में सबसे इंपॉर्टेंट जो बाकी चीजें क्या है, आपका थर्स्ट होती है, डिजायर्स होती हैं, बट वन थिंग विच इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड, दैट इज aversion to something. If a patient has a very strong aversion to something particular, aversion to sweets, aversion to sour, marked वाली, वो नॉर्मली आपको aversion, ये मेंशनड है आपके केस टेकिंग के अंदर कि अगर एवर्जन आ रही है पेशेंट को, वो एवर्जन लेना बहुत जरूरी होता है। डिजायर एक बारी को हो सकता है कि आप ना लें, इतनी इंपॉर्टेंट ना हो जब तक वो बहुत मार्क्ड ना हो, लेकिन अगर कोई मार्क्ड एवर्जन आपको मिल रही है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल जनरल सिम्टम दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। बाकी जो चीजें हैं, पसीना आता है, कहाँ ज्यादा आता है, स्टेनिंग करता है नहीं करता है, स्मेल आती है, टिपिकल स्मेल किस तरीके की होती है, वो चीजें उसमें आती हैं, बट इन जनरल सिम्टम्स, फिजिकल जनरल्स और एवर्जन, if you are getting a strong aversion with the patient says, like some patients are very very averse to milk, some patients are very very averse to particular flavors of something, maybe chocolate or coffee or something, तो वो अगर aversion strong मिल रही है, it has to be considered when you are doing the repetization. Do not ignore the clinical diagnosis because, as we discussed, we need to know the common symptoms. So, you are not supposed to include the common symptoms when you are repetizing. And to maintain the proper case records फॉर केस टेकिंग, जिसमें आप जो केस लिख रहे हैं उसमें एक एक चीज एक एक हेड के नीचे होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एक फिजिकल जनरल पहले पेज पे है, दूसरा फिजिकल जनरल लास्ट पेज पे है, एक मेंटल सिम्टम सेकंड पेज पे है, एक मेंटल सिम्टम फोर्थ पेज पे है, वो नहीं होना चाहिए। आपका एक ऑर्डर बनना चाहिए, एक सीक्वेंस बनना चाहिए, जिसमें आपने सपोज आपने एक सिम्टम लिया और पेशेंट उसमें अभी ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, यू वांट कि मुझे डिटेल चाहिए, यू कैन लीव दैट एरिया, यू कैन कम डाउन, यू कैन अगेन गो बैक टू द सिम्टम एंड यू कैन फिल द मिसिंग लिंक्स व्हिच आर देयर इन दैट। बट आप ये नहीं करोगे कि आप एक मेंटल सिम्टम यहां लिखोगे, उसी चीज का मेंटल सिम्टम आप तीसरे पेज पे लिख के उसकी एक्सप्लेनेशन दोगे, यू विल योरसेल्फ गेट कंफ्यूज एंड यू विल मिस ऑन द सिम्टम्स व्हिच आर देयर। सो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर केस रिकॉर्ड ऑन व्हिच यू नीड टू टेक इट। Is it clear to everyone? Anything, anywhere you feel that you need to ask? We are interacting for the first time. I don't know how you people are, assimilating it, but from my end, I'm trying to, give you all the details and all my experience that I have and the way I work. So अगर कहीं किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, you are free to ask me. Right? आई वांट टू आस्क वन थिंग। बोलो कोनिका। जैसे आपने बताया था कि जैसे हम स्टेरॉइड्स पे होते हैं तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो जनरली रेज होता है। जी, आई जस्ट वांट टू आस्क, विल इट अफेक्ट आवर HbA1c लेवल्स आल्सो? usually no. Usually ओके, no. थैंक यू। Usually no, because then again, if you want to diagnose diabetes, you need to have that HbA1c and ABG. That will come high. इसमें नॉर्मली क्या होता है, यूजुअली शुगर इन जनरल हाई आती है, आपका फास्टिंग शुगर हाई आ जाएगा या आपका रैंडम शुगर थोड़ा हायर साइड रहेगा, विच इज बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड। अदरवाइज पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आएगा, रेयर ही होगा। HbA1c हाई आने का मतलब ही है कि पेशेंट को डायबिटीज है, बिकॉज दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायबिटीज। ठीक है ना? सो वो आपको हाई नहीं मिलेगा, चांसेस कम है उसके मिले, नॉर्मली नहीं मिलता है। ठीक है ना? तो दैट इज, और क्योंकि पेशेंट स्टेरॉइड पे अगर होगा, एक्चुअली क्या होता है कि सपोज आपने स्टेरॉइड खाए, अब जैसे
कितने दिन से खा रहे हो? महीने भर से खा रहे होगे, क्योंकि नॉर्मली स्टेरॉइड दिए जाते हैं अक्यूट कंडीशंस में ही ज्यादा दिए जाते हैं। रोमेटॉइड हो गया या एंकाइलोजिंग हो गया, उसमें जनरल में पेशेंट ले रहा होता है, बट उस केस में उसके लिवर फंक्शन और शुगर लेवल्स रेगुलरली चेक किए जाते हैं। और अगर कहीं ऊपर नीचे आता है, कुछ ना कुछ मेडिसिन उनको लिवर के लिए दी हुई होती है जिसकी वजह से उनके लेवल्स कंट्रोल में रहे, तो वहां पे आपको HbA1c हाई नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, choosing the right similimum. So here, what do you mean by similimum? सिमिलिमम वर्ड आप सबने सुना हुआ है। सिमिलिमम का मतलब क्या होता है? आप सब थर्ड ईयर इंटर्न्स हैं तो आपको पता ही होगा। व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलिमम? अरे लिखा है सामने, इट इज द रेमेडी दैट मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द कंप्लीट सिम्टम पिक्चर ऑफ द पेशेंट। सो वी ऑल नो दैट सिमिलम का मतलब होता है जो उसके मेंटल जनरल मेंटल सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स और पर्टिकुलर सिम्टम्स को कवर करता है। सो हेयर वी नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन इट बिकॉज वी नो दैट व्हाट यू नीड टू टेक, यू ऑलरेडी नो कि हम जब रेपर्टाइज करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ऊपर मेंटल सिम्टम डालते हैं, फिर हम उसके बाद फिजिकल जनरल डालते हैं, फिर हम कोई कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम लेंगे। वी विल टेक सम पर्टिकुलर सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर अफेक्टेड ऑर्गन। सी अगेन here why I have mentioned this particular symptom? पर्टिकुलर सिम्टम का मतलब होता है कि आपकी रेमेडी अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर उसका स्फेयर ऑफ एक्शन नहीं है, द चांसेस ऑफ दैट रेमेडी वर्किंग इज गोइंग टू बी लेस। ऑल्दो ऐसा नहीं होता है, इट वर्क्स ऑन दोज ऑर्गन्स क्लियरली, बट समवेयर और द अदर व्हाट सिम्टम इज रिलेटेड टू दैट अफेक्टेड ऑर्गन शुड बी कवर्ड। सपोज आपने सारा केस रेपर्टाइज कर लिया, आपके पास एक किडनी स्टोन का केस है, आपने सारा केस रेपर्टाइज कर लिया, सब कुछ आपने उसमें देख लिया कि आपने ये सिम्टम्स डाल लिए, तो कहीं ना कहीं यू नीड टू चेक दैट अल्टीमेटली आपका रीनल कैलकुलाई में रेमेडीज कौन सी आ रही हैं। तो आप जनरल रीनल कैलकुलाई का सिम्टम वहां पे डाल सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वो रेमेडी जो भी आपने देनी है उसको मेन कंप्लेंट को कवर करना। और यूजुअली एक आपको, इट्स अ वेरी गुड मैथमेटिक्स कि यूजुअली जब आप मेंटल फिजिकल्स डालते हैं, जो रेमेडीज आ रही होती है वो ऑटोमेटिकली आपके उस पर्टिकुलर सिम्टम को भी कवर कर जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि वो कवर कर रही होती है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट ये होना चाहिए। एंड लास्ट ऑफ ऑल, कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस। अगेन दिस इज नॉट यूज्ड, बट दिस इज अल्टीमेटली यूज टू रूल आउट दिस थिंग कि ये इसका कॉमन सिम्टम है, इसको हमें लेना है यहाँ पर कि हमको नहीं लेना। यूजली हम वो कॉमन सिम्टम नहीं लेते हैं, बट यू शुड नो व्हाइल चूजिंग द सिमिलिमम कि कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। सो आपके मेंटल सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑफ द माइंड, योर फिजिकल जनरल एपेटाइट, थर्स्ट, डिजायर, जिसमें एवर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, एनी PQRS सिम्टम यू आर कमिंग अक्रॉस, द पर्टिकुलर सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन यू आर टॉकिंग ऑफ। अगर आप इसका सोरियासिस का केस डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास वो जो सिम्टम है कि आप ये नहीं डालेंगे इरप्शन सोरियासिस नहीं डालेंगे, लेकिन आप ये जरूर देखेंगे कि देयर इज इचिंग, रेडनेस। अगर वो बोलता है स्क्रैचिंग से एमिलोरेट हो रहा है, स्क्रैचिंग से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस तरीके की सिम्टम आपको वहां पर चेक करनी है कि वो सिम्टम में क्या रेमेडीज आ रही हैं, क्या वो रेमेडीज कहीं ना कहीं उसको कवर कर रही है कि नहीं कर रही है। आप अगर इरप्शन सोरियासिस भी डालोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो रेमेडी उससे मैच करती है। कई बारी, मोस्ट ऑफ द केसेस इट कैन मैच, बट देर इज अ पर चांस कि पर्टिकुलर सिम्टम वाला जो पार्ट है वो आपका मैच ना हो रहा हो, फिर भी आपकी वो रेमेडी इंडिकेटेड हो और वो रेमेडी आपके केस में, आपके उस केस में काम कर जाए। सो योर ऑर्डर ऑफ पुटिंग इट while choosing the synonym, what things you need to understand, what things you need to keep in mind are these things where you need to see कि ये सारे सिम्टम्स आपको देखने हैं। तो आप सिर्फ मेंटल डालकर या सिर्फ फिजिकल जनरल डालकर या सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक डालकर जब भी रेपर्टाइज करोगे, आपको रेमेडी हमेशा पार्शली इंडिकेटेड मिलेगी, कंप्लीटली इंडिकेटेड रेमेडी नहीं मिलेगी। बिकॉज टोटलिटी इन्हीं सब चीजों से बनती है। टोटलिटी, इन ये सारी चीजें टोटलिटी में होना जरूरी होती है, एक्सेप्ट फॉर द कॉमन सिम्टम्स विच वी आर ओनली टेकिंग बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे को पता होना चाहिए कौन सा सिम्टम है जिसको रूल आउट करना है, जो हमें नहीं लेना। क्लियर? Now, let's take this case. There is a patient, patient A, 32 years teacher, main complaint, migraine, headaches for 3 years, acidity and burning in the stomach. The patient says that headache occurs 2 to 3 times a week. Pain is mostly right-sided. Throbbing pain in temples. Words from sunlight and heat. Better from pressure and lying in dark room. अभी जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अब आपने आंसर देना है इसका। हम इसको दो तरीके से देखेंगे केस को, नॉजिया ड्यूरिंग हेडेक, इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग अटैक्स एंड बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक। यहां तक मेंटल सिम्टम से ऊपर ऊपर तक जो केस है, फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू
बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें रेकरेंट माइग्रेन हेडेक्स, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस तो ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है कि ये माइग्रेन का केस है, राइट साइड का हेडेक है, वन साइड का, और अल्टीमेटली वो थ्रॉबिंग टाइप का हेडेक है। क्या रेमेडी आपके दिमाग में आ रही है अगर हम सिर्फ मेंटल सिम्टम से पहले पहले की रेमेडी के बारे में पढ़े? व्हाट यू कैन थिंक ऑफ, व्हाट कॉमन रेमेडीज यू कैन थिंक ऑफ? एनी आइडियाज? क्या कॉमन रेमेडीज आप? Belladonna, बेलाडोना, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? uh, बेलाडोना Clonine, बेसिस पे आपने बोला? Belladonna, right-sided throbbing pain, ओके, व्हाट एल्स? and Clonine on the basis of sunlight and heat worse. ग्लोनाइन ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट एंड हीट, ओके। Yes. कुछ और कोई रेमेडी किसी के दिमाग में आ रही है? एनी रेमेडी? अभी तो केस पूरा नहीं है, आपने सिर्फ इतने ही सिम्टम लिए हैं। क्या और सोच सकते हैं रेमेडी आप यहाँ पे? एनीवन हैज एनी आइडिया? नो? आगे चलें। मेंटल सिम्टम्स: वेरी इरिटेबल व्हेन डिस्टर्ब, इजिली एंगर्ड, सेंसिटिव टू नॉइज एंड लाइट, एम्बिशियस एंड वर्क ओरिएंटेड पर्सनालिटी। नाउ टेल मी, अब और क्या रेमेडी हो सकती है इसके अलावा? वेरी इरिटेबल व्हेन डिस्टर्ब, इजिली एंगर्ड, सेंसिटिव टू नॉइज एंड लाइट, एम्बिशियस एंड वर्क ओरिएंटेड पर्सनालिटी। बेलाडोना ग्लोनाइन से आगे कुछ और समझ आ रहा है हमें? कोई और रेमेडी हो सकती है? अगर हम मेंटल सिम्टम साथ में ऐड करें, प्लीज स्पीक अप। बोलो, गलत बोलो चाहे। Nux vomica, ओके, हाउ डू यू कम टू नक्स vomica? nausea during headache, GI complaints के साथ headache आता है तो अच्छा, और कोई रेमेडी किसी को याद आ रही हो? एनीथिंग एल्स एनीवन कैन, एनी अदर रेमेडी यू कैन थिंक ऑफ? हेडेक किस? Tarantula, टैरेंटुला, व्हाई? very sensitive to noise and light, and ambitious and work-oriented personalities. ओके, ओके, व्हाट एल्स? हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी एनी कॉमन सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन इन दिस, जो इतना अभी तक हमने लिखा? इसमें कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं माइग्रेन के? कॉमन सिम्टम्स आपको कोई इसमें? Pain on the right side, throbbing pain was from light and heat, and nausea. These are the common symptoms, and very irritable also. टेबल नहीं, इरिटेबल व्हेन डिस्टर्ब लिखा उसने ये नहीं लिखा इरिटेबल व्हेन ही इज इन पेन। नाउ अगेन Okay, व्हाट यू no, नीड टू then अंडरस्टैंड इज कि हम जो सिम्टम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं वेरी वेरी इरिटेबल व्हेन डिस्टर्ब, नॉट वेरी इरिटेबल व्हेन। इफ ही वुड हैव सेड वेरी इरिटेबल व्हेन इन पेन, तो वो उसका कॉमन सिम्टम था। पर अभी उसने बोला वेरी इरिटेबल व्हेन डिस्टर्ब, तो ये तो कॉमन सिम्टम नहीं है। व्हाट एल्स? मेंटल सिम्टम्स में एक कॉमन सिम्टम है माइग्रेन का। sensitive to noise and light. प्रोवाइडेड दिस सेंसिटिविटी इज विद रिगार्ड्स टू हेडेक, अगेन ठीक है। एंड वैसे भी द पेशेंट्स ऑफ माइग्रेन आर वेरी सेंसिटिव टू नॉइज एंड लाइट, बिकॉज उनको अटैक ट्रिगर हो जाता है नॉइज और लाइट से। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हो गए। अब हमने इसमें से वर्स फ्रॉम सनलाइट एंड हीट हटा दिया, हमने लाइंग इन डार्क रूम बेटर फ्रॉम प्रेशर, अगेन माइग्रेन इज बेटर विद दैट, नोजिया हटा दिया, और हमने इसमें से सेंसिटिव टू नॉइज एंड लाइट हटा दिया। अब कोई और रेमेडी आ रही दिमाग में? सबसे कॉमन रेमेडी देते हैं हम हेडेक के लिए, क्या देते हैं मोस्टली? सबसे कॉमन रेमेडी क्या दी जाती है बेलेडोना के बाद? और कोई रेमेडी आपके दिमाग में आ रही हो विच यू कैन थिंक ऑफ? नो? सो वी वर टॉकिंग ऑफ बेलेडोना, वी टॉक्ड अबाउट ग्लोनोइन, नक्स vomica, टैरेंटुला बोला किसी ने, ठीक है। और आपने ये कॉमन सिम्टम्स इसमें से निकाल दिया। अब आप मुझे बताइए, ये सिम्टम्स आप कंसिडर करेंगे जब आप रेपर्टाइज कर रहे हो? विल यू टेक दिस सिम्टम्स? No. नो। चलिए, फिजिकल जनरल्स: थर्मल रिएक्शन में चिली पेशेंट, ड्रिंक्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, डिजायर्स स्पाइसी फूड, स्लीप इज डिस्टर्ब बाय वर्क स्ट्रेस, एंड बाल्स आर कॉन्स्टिपेटेड। एनाल हाँ, इसमें बताइए अब।
कुछ और समझ आया? Anything, any other remedy you can think of because of all these? It's a chilly patient, drinking large quantities of water, spicy food की desire. कुछ और रेमेडी आपको याद आ रही है? नहीं? बोलिए। नहीं। चलिए, इंपॉर्टेंट सिम्टम सिलेक्टेड। इरिटेबल टेम्परामेंट, जो हमने बोला कि इज इरिटेबल व्हेन डिस्टर्ब। हेडेक वर्स फ्रॉम सनलाइट, हेडेक बेटर बाय प्रेशर। कॉन्स्टिपेशन, अब आप देखो, विच इज द फर्स्ट सिम्टम इज मेंटल, headache worse from sunlight is a particular symptom that the patient is having, better by pressure is particular, constipation is a physical general, acidity gastric irritation again it's a general symptom, ambitions and work driven, ये ऊपर हम आइडली इसमें ऑर्डर में ऊपर आएगा, ambitions and work driven personality। इस केस में कहीं पे भी आपको कोई एलिमेंट्स फ्रॉम नहीं मिल रहे हैं, पेशेंट ने कुछ नहीं बोला कि मेरे को इस चीज से प्रॉब्लम होती है, उस चीज से प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ब्रीफ में लिखा गया है। लेकिन अगर आप डिटेल लेना शुरू करेंगे तो आप एम्बिशियस, वर्क ड्रिवन, इरिटेबिलिटी, इन सब चीजों के डिटेल उसके लेंगे। किस बात से आप इरिटेट होते हो, एम्बिशियस हो तो किस चीज के लिए हो, पैसे के लिए हो, फेम के लिए हो, क्या चाहते हो, काम कैसे करते हो, क्या आपका प्रोफाइल है, उसमें किस चीज का ध्यान रखते हो, ये सारे डिटेल्स आप अल्टीमेटली लेंगे। द की rubric selected were irritability, sun aggravates, pressure ameliorates, एसिडिटी, बर्निंग एंड कॉन्स्टिपेशन। अब आप में कुछ लोगों ने ये बोला था कि सन एग्रेवेट्स और प्रेशर, सन एग्रेवेट जो है वो एक कॉमन सिम्टम है डिजीज का, इट्स अ कॉमन सिम्टम ऑफ द डिजीज, बट सिंस इट्स अ सिम्टम विच इज बेसिकली देयर फॉर माइग्रेन, उसने स्पेसिफिकली बोला कि इस चीज से मुझे एग्रेवेशन होती है, तो अल्टीमेटली हम वो सिम्टम वहां पे डालते हैं। लेकिन अगर हम नहीं भी डालते हैं तो हमारा इसके बिना भी काम चलेगा। अगर हम इसको हटा भी देंगे तो भी हमारे ट्रीटमेंट में, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला है, मेडिसिन फिर भी वही आएगी जो मेडिसिन हमारे को जो जो आनी चाहिए। सो बेस्ड ऑन दिस द रेपेट्राइजेशन लीड्स टू दीज थ्री रेमेडीज, नक्स vomica, natremure and bryonia। Why bryonia? No one mentioned bryonia. Have you read Bryonia's headaches? ब्रायनिया के हेडेक पढ़े हैं किसी ने? क्वेश्चन आता है आपके पेपर्स में, आता है ब्रायनिया का हेडेक एक्सप्लेन करना है। Has anyone read Bryonia ka headache? Please go back and read Bryonia's headache. Bryonia is a very good remedy for headache with constipation, sun aggravation, ameliorated by rest, because Bryonia की सारी complaints lying down से rest से better होती है। So this is another, and again Bryonia person is the person who is always very very ambitious and talks about money, talks about business, talks about work। मैं बीमार हो गया तो मेरा काम रह जाएगा, मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, वहां पे Bryonia आती है, always talking about business। So Bryonia is another remedy that is there. But since the patient was chilly, उसने दिया Nux vomica matches because it covers the irritable temperament, sedentary personality, gastric complaints, constipation, and headache with irritability and sensitivity। ये headache with irritability and sensitivity नहीं है, general irritability and sensitivity cover करती है Nux vomica। Bryonia is not that sensitive. Bryonia is not a sensitive personality. So Nux vomica becomes the actual remedy जो I think Dr. Bableen ने बोला था। So that is the basic personality. This is just a small example of how you can arrive at the similimum by taking into account mental symptoms, physical general, पर्टिकुलर सिम्टम एंड अ कॉमन सिम्टम। तो उनको लेकर आप किस तरीके से रूल आउट करेंगे, आपका रूलिंग आउट आप किस तरीके से सॉरी रेपेट्राइज करेंगे, सो दैट यू अराइव एट अ रेमेडी। दिस इज व्हाट यू नीड टू सी। क्लियर टू एवरीवन? व्हाई नॉट नाट्रेम्यूर? आपको ये देख के ऐसा क्यों नहीं लगा कि नाट्रेम्यूर होना चाहिए था? नाट्रेम्यूर क्यों नहीं है ये पेशेंट? एनीवन हैज एनी आइडिया नाट्रेम्यूर क्यों नहीं दिया हमने? बोलिए। नो वन? चलिए सोचिएगा क्यों नहीं दिया नाट्रेम्यूर। नाउ पोटेंसी सिलेक्शन। पोटेंसी सिलेक्शन जो है, we all know there are three types of potency scales that we use: decimal, centesimal and 50 millisimal। What we are going to basically talk about here is going to be the centesimal scale, जो आपके C वाली पोटेंसीज होती हैं। रीजन बीइंग कि मोस्टली हम जो पोटेंसीज देते हैं पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं
वो ज्यादातर until unless we are not working with 50 millisieverts, we normally prescribe them in the centesimal scale. Now, when you select the potency, how do you people select the potency? आप जब केस लेते हैं तो potency किस बेसिस पे कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं आप? अभी तक अगर आपने केसेस देखे हों कहीं पे ओपीडी में या वैसे आपने देखा हो, पोटेंसी आप किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं? एनीवन हु इज इनटू इंटर्नशिप? एक्यूट में हाई पोटेंसी देते हैं क्यों, रीजन? सर। मतलब ससेप्टिबिलिटी उस टाइम पे उसकी हाई रहेगी, क्योंकि जस्ट उसको अभी प्रॉब्लम हुई है, तो हाई पोटेंसी उस पर जल्दी एक्ट करेगी तो वो इन कंपैरिजन टू लो पोटेंसी। हाइपोटेंसी देंगे तो एग्रेवेशन नहीं आएगा? सर हम मतलब ज्यादा भी हाई नहीं रखेंगे, जैसे हम 200 के उसमें भी रख सकते हैं, और मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में भी हम देखते हैं कि हाई पोटेंसी जाती है, मेंटल वर्क में भी हाई पोटेंसी जाती है। हाँ नहीं, आपने जितने बोला भी अक्यूट में हम हाइपोटेंसी देते हैं, तो यू डोंट सस्पेक्ट कि उसमें कोई एग्रेवेशन आएगा अगर हम अक्यूट में हाइपोटेंसी देंगे? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब आप अक्यूट देते हो और उसके अंदर एग्रेवेशन आए तो क्या करोगे आप? आपने दे दिया, आपने सर आर्सेनिक वानिम दे दी, आर्सेनिक वानिम देते ही पेशेंट का फीवर और बढ़ गया, राइट साइन है कि गलत साइन है? सर अब अगर मेडिसिनल एग्रावेशन है, हम्म। अगर होम्योपैथी मेडिसिन की है, तो हम कह सकते हैं कि राइट तरफ जा रहा है, क्योंकि उसकी डिजीज नहीं प्रोग्रेस हुई है, उसी मेडिसिन का ही सिम्टम आया है। तो हमें कैसे पता अगर चलेगा कि मेडिसिनल एग्रेवेशन या डिजीज एग्रेवेशन है? तो उसके लिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। उसके हमें प्रोग्रेशन पता होएगी कि किस तरफ जाना चाहिए डिजीज, जी। तो हेल्प करती है हमें बहुत ज्यादा। अगर प्रोग्रेशन खराब हो रही है तो डिजीज जो अगले स्टेप में क्रॉनिक तरफ में जाते हुए मतलब खराब वर्स में अपने सिम्टम्स देगा, तो हमें फिर मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी। नहीं एक तो बहुत ही सिंपल सा हम क्लिनिकल डिफरेंस क्या नजर आएगा आपको डिजीज एग्रेवेशन में और होम्योपैथिक एग्रेवेशन में? एक सिंपल चीज, बस सिंपल एक चीज, ये आप ठीक हो और ऑन द राइट ट्रैक, बट कैसे पता चलेगा ये डिजीज की एग्रेवेशन नहीं है, ये होम्योपैथिक एग्रेवेशन है जो दवाई से आई है? आपके पास पेशेंट 5 सिम्टम्स लेकर आया, आपने उसके बेसिस पर अक्यूट में आया, फीवर हो गया, कफ हो गया, जो भी हो गया, और आपने उसके ऊपर उसको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। मेडिसिन देते ही अगर उसके डिजीज के सिम्टम्स जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिम्टम्स हैं उनके अंदर अगर किसी तरीके का इंक्रीज होता है तो वो होम्योपैथिक एग्रीवेशन मानी जाती है। पर अगर कोई नया सिम्टम डेवलप होता है जो पहले नहीं था और वो एडेड सिम्टम आता है उस डिजीज का, देन इट इज अ डिजीज एग्रीवेशन। समझ आ रही है आपको बात? दैट इज कॉल्ड एज ओके सर। डिजीज एग्रीवेशन। बट यस, यू आर राइट ऑन दैट पार्ट कि जब हाई पोटेंसी देंगे अगर उसका एग्रीवेशन आएगा तो ऑब्वियसली वो एग्रीवेशन, उस एग्रीवेशन के साथ ये नहीं होगा कि पेशेंट का जो जनरल स्टेट है वो खराब होगा। ही माइट से दैट यस माय एनर्जी लेवल्स, माय स्लीप, माय थिंग्स आर बेटर, बट मेरा फीवर इंक्रीज कर गया। तो इसीलिए हम, what do we say about an acute disease? What has Hahnemann mentioned about an acute disease? It is a storm. It comes immediately, stays for some time and goes. So that is the reason why we give a very high potency in frequent repeated doses at times. So we give 2-3 doses at times. हम 200 भी 3 या 4 डोजेस 5 डोजेस रिपीट में देते हैं। पेशेंट को बोलते हैं आप 2-2 घंटे पर ये दवाई ले लीजिए 2-3 बार, उसके बाद हम उसको नॉर्मल प्लासिबो पे रखते हैं फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज और वी गिव समथिंग कॉम्प्लीमेंट्री। बट बेसिक पॉइंट इज कि हम उसको वो हायर पोटेंसी रिपीट करते हैं। So the nature of the disease decides that if it is an acute disease, higher potencies with more frequent repetition are given. But if it's a chronic disease, you will again give a higher potency but less frequent repetition. Chronic में आप सिंगल डोज या 2 डोज देकर you will wait and watch to see that what changes are coming, because chronic disease धीरे धीरे डेवलप होती है और धीरे धीरे उसके सिम्टम्स जो हैं वो एग्जैजर्बेट होते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन अब ये आता है कि अगर पेशेंट आपके पास एक क्रॉनिक डिजीज का है और आपने उसको दवाई दिया, वो पेशेंट आपकी दवाई से सिम्टम्स में बेटर हो रहा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया जिससे उसके सिम्टम्स एकदम से एग्रेवेट कर गए, क्या करेंगे आप? एनीवन एल्स हु कैन प्लीज रिप्लाई टू दिस? दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग और ये आप क्लिनिक्स में बहुत देखोगे। आपका पेशेंट आपके पास एक क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए आया था, आपने उसको दवाई दे दी, उस दवाई से वो ठीक हो रहा था, बीच में उसके सिम्टम्स ठीक हो रहे थे, बट अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गई, एकदम से उसका
कुछ एग्रवेट हो गया बीच में किसी वजह से, तो आप सबसे पहले चीज क्या, उसमें आप क्या करेंगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर द मेडिसिन, व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर द पोटेंसी? एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट दिस? ये चीजें होंगी क्लिनिक्स में, सो यू शुड नो हाउ यू हैव टू हैंडल इट, जिसको हम बोलते हैं acute exacerbation ऑफ अ chronic illness। क्या करेंगे? यस डॉक्टर बबलीन, कुछ कहने लगे थे आप? सर जो क्रोनिक क्रोनिक केस के टाइम जो मेडिसिन दे रखी थी उसको एंटीडोट कर देंगे। नहीं, क्यों? आपका पेशेंट बेटर हो रहा है उससे, एंटीडोट आप क्यों करोगे? पेशेंट इज हम्म, गेटिंग बेटर, आपने उसको पल्सेटिला दी, उससे ही इज गेटिंग बेटर, कोई दिक्कत नहीं है। पर बीच में एकदम से अक्यूट एग्जैजर्बेशन आ गया, क्रॉनिक साइनोसाइटिस का पेशेंट था, पल्सेटिला से बहुत बेटर चल रहा था, बीच में एकदम से अक्यूट एग्जैजर्बेशन आया, क्या करेंगे आप? आप उसका आप उसका उस रेमेडी से मिलती, जब आप उसके सिम्टम्स लेंगे एक्यूट एग्जार्बेशन में, तो जो रेमेडी आपके पास आ रही होगी, इट शुड ऑलवेज बी a complementary of the remedy that has been given. So you can always give that complementary remedy to take care of acute symptoms, or you can leave the patient without medicine. It's an acute exacerbation. Hahnemann has written this. Please leave the patient without giving any medicine. The acute exacerbation will pass out in some time. But if you feel that yes, the patient is actually coming under a lot of problem, तो आपको उसके सिम्टम्स लेने हैं। जो रेमेडी आएगी वो हमेशा आपकी एग्जिस्टिंग रेमेडी की कोई कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी है, क्योंकि acute exacerbation is nothing but it is the एग्रेवेशन ऑफ द क्रॉनिक सिम्टम्स ओनली, क्रॉनिक का ही एग्रेवेशन है जो अल्टीमेटली हो रहा है। तो उसकी मोडालिटीज और उसकी जो भी उसके सिम्टम्स आएंगे वो आपकी क्रॉनिक रेमेडी से मिलते जुलते सिम्टम्स होंगे, तो आप उसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी से उसको टेक केयर कर सकते हैं। अगेन यू विल हैव टू गिव इट इन अ हायर पोटेंसी बिकॉज इट इज एन एक्यूट एग्जैजर्बेशन। सो दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको वहां पर क्या स्टेप लेना है। या तो उसको बिना मेडिसिन के छोड़ दो, कोई बात नहीं, चलने दो, ठीक है, वो उसको थोड़े आप मेजर्स बताओ मैनेज करने के लिए, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वेंजेंस के साथ नहीं आया है। अगर वेंजेंस बहुत ही ज्यादा है, यू आर नॉट गोइंग टू गिव वेरी फ्रीक्वेंट डोजेस, गिव 1 or 2 doses ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी एंड जस्ट वेट, एंड द phase is going to pass out. Next is vitality of the patient. What do you mean by a strong vitality? Young robust individuals respond well to higher potency. इसमें ये young robust individuals का मतलब क्या है? ये किस चीज से रिलेटेड है वाइटैलिटी यंग रोबस्ट? एल्डरली और डेबिलिटेटेड पेशेंट्स यूजुअली रिक्वायर लोअर पोटेंसीज, लो वाइटैलिटी। व्हाट डू मीन बाय द स्ट्रॉन्ग वाइटैलिटी एंड लो वाइटैलिटी? समथिंग टू डू विद पीपल हु गो टू जिम एंड डोंट गो टू जिम, और समथिंग एल्स? हाँ जी, एक तो क्लियर है, यंग एंड एल्डरली। तो जो यंग है, जैसे बच्चे हैं या आपके यंग इंडिविजुअल्स हैं, उनमें हायर पोटेंसीज काम करती हैं। लेकिन अगर एल्डरली पेशेंट्स हैं तो उनके अंदर वो लोअर पोटेंसीज रिक्वायर्ड होंगी, तो उनकी वाइटैलिटी लो है। व्हाट अबाउट रोबस्ट इंडिविजुअल्स एंड डेबिलिटेटेड पेशेंट्स? व्हाट इज दिस? रोबस्ट मींस, यहां पर रोबस्ट और डेबिलिटेटेड का मतलब क्या है? इट इज विद रिलेशन टू व्हाट? हाँ जी, एनी मैन हैज एनी आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय रोबस्ट एंड डेबिलिटेटेड? सर रोबस्ट हेल्दी इंडिविजुअल इन द स्ट्रॉन्ग, हाँ, इसमें स्ट्रॉन्ग इन व्हाट सेंस? स्ट्रॉन्ग इन व्हाट सेंस? सर जैसे डिजीज कैचिंग के उसमें जैसे ससेप्टेबिलिटी का जैसे हम्म। रोल आ जाता है। हम्म। ये जो स्ट्रॉन्ग रोबस्ट इंडिविजुअल है उसकी ससेप्टेबिलिटी इतनी नहीं वो होगी जल्दी डिजीज कैच करने में। हम्म। और जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में है, जैसे यंग छोटे बच्चे और एल्डरली हैं और हम्म। वो डेबिलिटेटिंग वीक हो चुके हैं, तो उनके जल्दी कैच करेंगे वो डिजीजेस। सो दिस हैज मोर टू डू विद योर इम्यूनिटी पैरामीटर, कि जो आपके रोबस्ट इंडिविजुअल्स हैं जिनका इम्यूनिटी इम्बैलेंस उतना ज़्यादा नहीं है, किसी डेबिलिटेटिंग इलनेस के साथ वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, दे आर योर यंग रोबस्ट इंडिविजुअल्स। एंड एल्डरली या डेबिलिटेटिंग डिजीजेस वाले, जैसे
किसी को भी अगर रूमेटॉइड, एंकाइलोजिंग, ऑस्टियोआर्थराइटिस, दीज आर ऑल डेबिलिटेटिंग डिजीजेस जो पेशेंट को वीक छोड़ कर देती हैं। सो वहां पर अल्टीमेटली आपकी लो पोटेंसीज काम करती हैं। नॉर्मली अगर आपके पास कोई केस ऐसा आता है जहाँ पर सपोज हम बोले कि हमारे पास कोई पेन्स का केस आ रहा है, जॉइंट पेन्स का आ रहा है, आर्थराइटिस का, नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी केस आ रहा है, तो उसमें कई बार जो आपकी इंडिकेटेड रेमेडी है वो अगर आप रिपीटेड डोजेस में लोअर पोटेंसीज में भी देते हैं तो उस केस में पेशेंट बेटर होता चला जाता है, रादर देन अगर आप 200 देते हैं या 1 ml दे के 2 डोज दे के रुकते हैं एसएल के साथ, कई बार आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट उसमें नहीं भी मिलते। सो वहां पर अल्टीमेटली आपको लो वाइटालिटी के हिसाब से उसको प्रिस्क्रिप्शन देना है। सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट, हाईली सेंसिटिव पेशेंट्स में रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली इवन टू लो पोटेंसीज लाइक चिल्ड्रन, इमोशनल इंडिविजुअल्स एंड हाइपर सेंसिटिव पेशेंट। ये हैं वो पेशेंट जिनको हम बोलते हैं दैट दीज आर योर इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स। दीज आर पेशेंट्स जो अल्टीमेटली आपके, जैसे आपने उनको जब मेडिसिन दिया तो जो सिम्टम मेडिसिन के हैं वो और सिम्टम्स उसके अंदर आ जाते हैं। आपने उसको रेमेडी दी उसके केस के हिसाब से, बट दे आर गोइंग टू डेवलप सिम्टम्स विच आर गोइंग टू बी ऑफ द मेडिसिन, दे विल डेवलप मोर सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन बिकॉज उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो उस केस में अल्टीमेटली आपको हमेशा लोअर पोटेंसीज में काम करना होता है। देन नेचर ऑफ द सिम्टम्स, the predominantly mental symptoms, higher potencies are preferred. Why do we prefer mental symptoms में higher potencies? एंजाइटी है, फियर है, ओसीडी है, एडीएचडी है, ऑटिज्म है, इन सब केसेस में आपको हायर पोटेंसीज दी जाती हैं, देनी होती हैं। व्हाई वी हैव टू गिव हायर पोटेंसीज, व्हाई नॉट लो? हाँ जी, ये है आपके ऑर्गेनॉन में मेंशन। व्हाई हायर पोटेंसीज, मेंटल सिम्टम्स का चैप्टर है पूरा एक, मस्ट हैव रेड समवेयर। वन साइडेड डिजीजेस क्या होती हैं? मेंटल डिजीजेस आर वन साइडेड डिजीजेस। हैज एनीवन रेड इट? These are one-sided diseases which are there, mental diseases. So since the plane of action is the mind, which is basically the, which part of the mind is there, which is actually in which, in the case of mental diseases, कहाँ पर काम करती है आपकी मेडिसिन जाकर? Through the nerves once it is absorbed, which is the center of the brain where it is going to work and from where it will start working. Any idea anyone has? हाँ जी, anyone has any idea which is the center of the brain from where the medicine starts working? अरे, आपने दवाई दिया, वो मेडिसिन आपने पढ़ा है that through the nerves it gets involved, it gets absorbed. Where does it go and start working? In case of mental diseases, it is the, from where do these emotions come? Anxiety, fear, emotional disturbances कहाँ से आती हैं? कहाँ से आती हैं भाई? They all come from the hypothalamus, which is the control center of the brain. So you need to have a higher potency because the hypothalamus needs to be sensitized for your these anxieties and fears to come under control. Homeopathy is completely scientific. It has nothing to do with कि ठीक है डोज दे दो, देख लेंगे कहाँ काम करेगी, कैसे करेगी, कहाँ जाके काम करती है आपको ये पता होना चाहिए। सी व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स टू यू। आजकल का पेशेंट बहुत पढ़ा लिखा है, वो एक साइंटिफिक, वो आपके पास अगर कोई आईटी वाला या इंजीनियर फंस जाए तो वो आपसे 36 सवाल पूछेगा कि ये चीज ऐसे क्यों वैसे क्यों। सो यू शुड नो वेयर इट इज वर्किंग। इट इज वर्किंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, स्पेशली इन द केस ऑफ मेंटल डिजीजेस, बिकॉज दैट्स द सेंटर फ्रॉम वेयर एवरीथिंग इज कमिंग अंडर कंट्रोल। आपके जितनी एंग्जाइटीज, फियर्स, इमोशन, हंगर, स्लीप, जो भी चीजें आपकी होती, जो भी आप इमोशनली फील करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें अल्टीमेटली आपके हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती हैं। सो दैट इज द पार्ट। सो सिंस इट्स अ डीप पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज समवेयर इन द ब्रेन स्टेम वेयर इट इज लोकेटेड। सो आपको वहां पर हायर पोटेंसीज देनी है, जबकि फिजिकल सिम्टम्स के केस में लोअर है मॉडरेट पोटेंसीज। व्हाई वी नीड टू प्रिस्क्राइब अ लोअर पोटेंसी? अगर किसी तरीके का सपोज अगर कोई ट्यूमर है या किसी तरीके का कोई सिस्ट है या कोई ऐसा चीज है जिसमें कोई पैथोलॉजिकल चेंज है, लिवर एनलार्जमेंट है, तो लोअर पोटेंसीज क्यों दी जाती है? वहां पे हायर पोटेंसीज क्या प्रॉब्लम करेंगी, क्या इश्यू क्रिएट करेंगी हायर पोटेंसीज आपकी? Why you need to give lower potencies in pathological changes? We give tinctures, we give lower potencies 6C 30, ये सब क्यों दी जाती हैं? हायर से क्या नुकसान होगा? Anyone has any idea?
अरे, आप लोगों ने पढ़ा है ये सारा कुछ? वाई लोअर पोटेंसीज, व्हाट इज द हायर पोटेंसी गोइंग टू डू? अगर आपके सपोज कहीं पे कोई सिस्ट है बनी हुई, कोई पॉलिप बना हुआ है, तो हायर पोटेंसी क्या करेगी, नुकसान क्या करेगी? हायर पोटेंसीज यूजुअली आपकी जो सेलुलर डिजेनरेशन हो रही है या जो उसमें सेलुलर चेंजेस हो रहे हैं, सिंस इट्स अ डीप एक्टिंग रेमेडी, इट इज गोइंग टू अल्टीमेटली इंक्रीज। सी व्हाट हैपेंस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है, टीएसएच के लेवल्स, आप जब अपनी होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो टीएसएच के लेवल्स एकदम से नीचे नहीं आते हैं। आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसको सेंसिटाइज करती है आपकी रेमेडी, और फिर वो धीरे धीरे उसको सेंसिटाइज करके थायराइड की सिक्रीशन थायरोक्सिन की बढ़ाती है, जिससे अल्टीमेटली आपके टीएसएच लेवल्स कंट्रोल में आने शुरू होते हैं। दैट्स हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स। तो अगर आपको कहीं पे किसी तरीके का पैथोलॉजिकल चेंज है जिसमें ऑलरेडी सेल में चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप कोई हायर पोटेंसी देंगे तो वो हायर पोटेंसी जाके इमीडिएटली उस सेलुलर स्ट्रक्चर को, क्या में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको, एक बेसिकली हायर पोटेंसी मींस हायर फोर्स। सो इफ यू आर पुटिंग अ हायर फोर्स, धक्का जोर से मारोगे तो चीज आगे भी जोर से बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली वो हायर पोटेंसी जाकर उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस को बढ़ा देगी। दैट इज वाई आपको लोअर पोटेंसी भी देना होता है, क्योंकि लोअर पोटेंसीज के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें, क्योंकि क्रूड ड्रग का फॉर्म, obviously lower potency means the crude drug is high and the alcohol content is less, your potentization is less. So since the potentization is less, the plane of action is superficial, and since it's only the organ structure which is to be worked, so वो उस plane of action पे काम करती है। तो आपको वो लोअर पोटेंसीज में देना इसलिए जरूरी होता है, और मेंटल में क्योंकि प्लेन ऑफ एक्शन आपका डीप है तो आपको वहां पर हायर पोटेंसीज में देना होता है। नाउ, functional disorders respond well to higher potencies. Functional disorders means any disorders जहां पर आपको symptoms आ रहे हैं, स्नीजिंग है, कोल्ड है, कफ है, डायरिया है, आपको जो भी इस तरीके के फंक्शनल चेंजेस हैं, वहां पर आपकी हायर पोटेंसीज नॉर्मली हायर होम्योपैथी में 200 प्लस मानी जाती है, और अगर आप लोअर पोटेंसीज की बात करते हो तो एडवांस स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी में मॉडरेट पोटेंसीज 6C30 ये वाली पोटेंसीज आपकी चलती है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी नोटिस्ड हियर इज करेक्ट रेमेडी with wrong potency may delay cure. So if you are giving the right remedy but the potency is wrong, आराम जल्दी नहीं आएगा, but wrong remedy with any potency will never cure. So that is the thumb rule in homeopathy कि अगर आप wrong remedy दे रहे हैं, चाहे आप जो मर्जी पोटेंसी में दे दीजिए, आपकी रेमेडी काम नहीं करेगी। अगर आपकी रेमेडी करेक्ट है लेकिन आपकी पोटेंसी गलत है, तो उस केस में आपका क्योर थोड़ा डिले हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेमेडी करेक्ट है लेकिन पोटेंसी गलत है? पेशेंट कैसे बताएगा आपको? हाउ विल यू डेसिफर कि आपकी पोटेंसी जो है वो गलत है और मुझे चेंज करनी पड़ेगी? एक तो चलो आपने जो रूल पढ़ा कि एक्यूट में हाई, क्रोनिक में वो तो चलो एक रूल है ही, बट स्टिल अगर आपने सपोज दे दी लेकिन वो अल्टीमेटली काम नहीं करी, वो आपको पता कैसे चलेगा कि ये काम नहीं कर रही है? रेमेडी करेक्ट है वो आपको पता चल गया, वो हाउ विल यू कम टू नो दैट द रेमेडी इज राइट बट द पोटेंसी इज रॉन्ग? व्हाट विल हैपन? क्या होगा? ये भी लिखा है किताब में आपकी, अगर आपकी पोटेंसी गलत है, आपकी रेमेडी करेक्ट है, तो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो ठीक होंगे, फिर से बढ़ जाएंगे, ठीक होंगे, फिर से बढ़ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए वो ठीक होगा, दोबारा ही विल कम बैक टू यू विद एन एग्रीवेशन। सो दैट इज वेयर वी कम टू नो दैट द रेमेडी वाज करेक्ट बट द पोटेंसी वाज रॉन्ग। सो डोंट बी इन अ हरी टू चेंज द मेडिसिन, फर्स्ट चेंज द पोटेंसी। इफ यू सी कि हाँ पेशेंट को आराम आया, 2 दिन आराम आता है, तीसरे दिन प्रॉब्लम हो रही है, तो अल्टीमेटली पेशेंट को सबसे पहले वही मेडिसिन हाई पोटेंसी में दीजिए, बाद में आप अपनी रेमेडी चेंज करने की तरफ जाइए। द मोमेंट यू आर गोइंग टू चेंज द पोटेंसी, द पेशेंट विल स्टार्ट इंप्रूविंग। बट ऑब्वियसली इफ ही इज नॉट इंप्रूविंग, इन दैट केस आप जो मर्जी पोटेंसी दीजिए, आपका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, आपकी रेमेडी गलत है, आपने जो रेमेडी चूज करी है वो ठीक नहीं है। Anyone has any queries regarding anything? Anyone wants to ask anything? हाँ जी, anyone has any issues? कोई questions हैं आपके? So, what are the basic steps that we need to follow? Confirm the simillimum, determine the nature of the disease. आपको पहले सिमिलिमम निकालना है, आपने एक रेमेडी निकाल ली, एक्स रेमेडी, ए रेमेडी, बी रेमेडी, जो भी रेमेडी आपकी आ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन यू डिटर्मिन द नेचर ऑफ द डिजीज, दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डिजीज इट इज, अक्यूट है, क्रॉनिक है, किस तरीके का पैथोलॉजिकल चेंज है, फंक्शनल डिसऑर्डर है,
assess the vitality of the patient, पेशेंट आपका छोटा है बड़ा है, किस तरीके की सेंसिटिविटी रखता है, evaluate the sensitivity of the patient. कई बार पेशेंट्स आपको ये आके बताते हैं, you all must have read about primary action and secondary action, पढ़ा है सबने? You people know what is a primary action and a secondary action? Yes, you sir. you get patients who come and tell you कि मैं जब ये खाता हूं तो मैं मतलब मुझे ये खाने से ये प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब इन द सेंस कि अगर उसका उसका एक्शन कैसे होता है कि मैं अगर जैसे कई लोग बोलते हैं कि अगर मैं कॉफी पी लूं तो मुझे नींद आ जाती है इंस्टेड ऑफ कि कॉफी पीने के बाद मेरी नींद उड़ जाए, तो वो उसकी सेंसिटिविटी है दैट वो प्राइमरी की जगह सेकेंडरी एक्शन दिखाता है। ठीक है, कई बार पेशेंट आपका पुराना पेशेंट है, वो आता रहता है, तो आपको पता है कि जब आप उसको कोई रेमेडी देते हो तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं जो उस डिजीज के सॉरी उस रेमेडी के सिम्टम्स होते हैं, वो एक तरीके से उसको वो एक तरीके का इडियोसिक्रेटिक पेशेंट है, तो वो उसकी सेंसिटिविटी होती है। इवैल्यूएट द नेचर ऑफ द सिम्टम्स एंड देन असेस द डेप्थ ऑफ द पैथोलॉजी। एनीवेयर you are coming across a remedy but there is a pathological change in that particular patient, do not prescribe a higher that remedy in a higher potency. आप 30 में दे दीजिए, आप 6 में दे दीजिए, आपको नजर आ रहा है कि पेशेंट में पैथोलॉजी है, मेडिसिन इंडिकेटेड है, ठीक है, XYZ जो भी मेडिसिन आ रही है, चाहे पल्सिटिला है, चाहे बेलाडोना है, चाहे ग्लोनोइन है, जो भी रेमेडी आ रही है, आपको वो लोअर पोटेंसी में उसको देनी है। डोंट गिव इट इन अ हायर पोटेंसी इफ देयर इज अ pathology that is involved into that. So these are the steps that you need to follow when you decide on the potency. I know it must not be very clear to you because ये थोड़ा सा आपको experience के साथ आता है. But remember one thing, if a medicine is working in a lower potency, it is bound to work in a higher potency. But if it is not the right remedy, it will not work in any potency. So that is the thing कि अगर आप 30 में भी दे रहे हो, आप 200 भी दे रहे हो, अगर वो 200 में काम कर रही है तो 1M में काम करेगी ही करेगी। लेकिन अगर वो 1M अगर आपने 30 में दी वो काम नहीं कर रही, तो वो 200 और 1M में भी काम नहीं करने वाली है। देने को 30 देने से भी काम हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। So you need to decide on the basis of the disease, on the basis of the patient condition and your own experience कि मुझे potency क्या देनी है। To be very safe and sound, the best potency, a very safe potency to give is usually 200 which is given. तो आप बड़ी सेफली, अगर मतलब कहीं ना कहीं कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है तो आप 6 या 30 में जा सकते हैं, पर अगर यूजुअली आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दे रहे हैं, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी दे रहे हैं, 200 इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सेफ पोटेंसी, नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो, सो यूजुअली इट वर्क्स मॉडरेटली। बट येस, अगर आपको कोई पैथोलॉजिकल चेंज है तो आप 30 या 6 से भी शुरू कर सकते हैं। So that is what you need to understand. That is all about how, what, you need to follow when you do. When we come down to doing all these things in detail, there's a lot of things that goes into it. Case taking is not a very easy task. आपको बहुत चीजें देखनी होती हैं. So many things have to be taken into consideration. लेकिन आपका केस जो है वो आपकी प्रैक्टिस का बेसिक, हम बोले कि फाउंडेशन है। जब तक आप वो ठीक से नहीं करेंगे तब तक आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। And don't ever take a case in a hurry. You don't need to do that. You need to be very, very, आपको पेशेंट को 4 बार भी बुलाना पड़ता है, उसको बुलाओ, उसको रेमेडी जल्दी मत दो, आराम से केस लो, सारा डिटेल लो, उसके हिसाब से ही आपने दवाई दे रहे हो। You need to reach to the call. The first chapter of Kent's lecture gives you a complete idea about what you need to do in a patient when you're taking a case. ध्यान से पढ़िए, उसमें कॉज, विल, अंडरस्टैंडिंग सब चीजें दे रखी है, वो आपने क्या करना है उसके अंदर सारा एक्सप्लेनेशन उस हिसाब से आपको दिया गया है। दैट इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, यू कैन प्लीज टेल मी। चैट में क्वेश्चन डाला है आपने कोई? We have our national advisor Dr. B.S. Chandok with us. आप बच्चे शायद जानते नहीं होंगे, he is the national advisor and the founder member of IHP. Sir, good afternoon. So he has attended the whole lecture. मैंने सर अभी देखा आपको। Anyone has any questions, please? हाँ जी डॉक्टर, anyone has any questions you want to ask? Pankaj, did you ask me? नहीं नहीं सर, not you, I'm asking them. आपको तो पता ही है। Okay. किसी को कोई क्वेश्चंस हैं? Anyone wants to know anything else? I hope you like the lecture. Whatever best I could do in the short time, I've done it. And we'll be coming up with more lectures like this. So
Please see anything you want to ask. I have already shared my number with you, so you can send me a message if you want to ask anything. I'll reply back to you. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, beta. सर जैसे पोटेंसीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंसीज, उसमें हमें कौन सी पोटेंसीज में कितनी रिपीटिशंस देनी होती है और देन उसके बाद प्लेसिबो पे रखना होता है? ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी पोटेंसी काम कैसे कर रही है। मैंने यहाँ पर रेपिटेशन का इसलिए नहीं डाला स्लाइड, क्योंकि रेपिटेशन के लिए आपका फॉलोअप लेने में आपको क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बट यूजुअली जब आप एक रेमेडी देते हैं, देने के बाद आपको ये लगता है, सी आपके पास पेशेंट फॉलोअप में आ रहा है, आप उससे पूछ रहे हैं सिम्टम्स उसके ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। जब तक उसके सिम्टम्स उस लेवल पे नहीं आते जहां पर वो बोले कि अब इससे आगे वो ठीक नहीं हो रहा, दैट इज द टाइम वेयर रेपिटेशन कम्स। या अगर आपको कोई नया सिम्टम डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स, जब आपने उनको वो पोटेंसी दिया हुआ है, तो अगेन जो रेपिटेशन है वो इस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। हो सकता है पेशेंट 15 दिन में ही बिल्कुल ठीक होकर आया हो, ठीक है, बहुत चीजों में। हो सकता है उसको 3 महीने तक भी उतना आराम नहीं आ रहा हो। बट वी शुड नॉट बी इन अ हरी टू रिपीट द मेडिसिन वेरी सुन, बिकॉज आपको वहां पे सिम्टम कंपैरिजन और उसकी इंटेंसिटी का कंपैरिजन करना जरूरी है। अगेन उसमें ये काम आता है कि आपने सपोज सोरियासिस का या एक्जिमा का पेशेंट है, आपने फोटो लिया, उसकी 5 जगह प्रॉब्लम थी, 5 में से 2 ठीक हो गई, 3 रह गई, तो इसका मतलब आपकी रेमेडी काम कर रही है। वेट, बिकॉज देर आर सम एरियाज विच कैन बी मोर ससेप्टेबल, सम विच कैन बी लेस, तो वो उस पर डिपेंड करता है। दैट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, विल डेफिनेटली टेक अप इन नियर फ्यूचर कि रेपिटेशन हमने कैसे करनी है, फॉलोअप में हमें क्या देखना है, कैसे देखना है, कब आपका पेशेंट एसक्यू माना जाएगा, कब आपका पेशेंट बेटर माना जाएगा, इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं। ठीक है। Pankaj, हाँ जी सर। do you, you sir. permit me to say something? ओके सर, मोस्ट वेलकम। Well, I see there are few youngsters in the attending the class, है ना? हाँ जी सर। So, are these all Aditya, Bablin, Dipanshu, and सर, ऑल फ्रॉम चंडीगढ़ सर। they are all from Chandigarh final year? नो सर, थर्ड ईयर एंड इंटर्न्स। All right. So I could see that they all were keen to pick up things, and especially that girl Kanika, I think she has left. Right? She was participating in the discussion. So this was an exceptionally wonderful teaching. I'm telling these students now. This was an exceptionally wonderful teaching. If you rate it as per the teaching standards. Nobody will teach you case taking in this 2 hour session to this extent in such a authentic, complete way, right? So the students among these five, six of them, I think they knew. They knew about it, but they were not confident whether they were not sure कि वो ठीक जवाब देंगे या नहीं देंगे, right? So this is what is required. When you get this kind of learning, then you learn. What you have been learning in the class was a compulsive learning. जहाँ पे you people had pressure on you, you people had exams, you people had multiple things to learn and do. But here, if you are attending this one particular class on this one particular subject, this is your optional reading, which is learning, which is always much more acceptable and useful to your mind, to your brain, to your learning channel. So what I was feeling bad was that such a wonderful lecture and only 7 participants. That was not good. Yes sir. My request to all 7 of those who are attending, that they should spread this piece of information to all their friends, all their colleagues, that what all you learned in this session and how you liked the session, because there is no question of not liking the session. I myself attended it, and I can rate it to what rating it was. So you have to at least tell your other colleagues that this was so important, and tell them to attend all the future lectures what Dr. Pankaj would be delivering in this program. And this is meant for you people
especially you people, and IHP as such, is determined to spread this continuing medical education. Continuing medical education is for us also. Even those who have 45 years of experience, we still learn, right? Even from Pankaj's today's lecture, not that I did not know this, but still I learned few things, right? So, my humble request to all of you youngsters, जो भी आज किया है इसको रिवाइंड करो, रीस्पूल लगाओ इसकी कैसेट अपने माइंड की, नोट, मेक नोट्स आउट ऑफ इट, एंड स्प्रेड दिस वर्ड टुमारो व्हेन यू गो टू द कॉलेज टू ऑल योर फ्रेंड्स. जितना कहते हैं, जितने गुरु लोग थे ना, वो अपने श्रद्धालुओं को ये बोलते थे कि ये मैसेज मेरा कन्वे करो. तो अगर आप अपने और फ्रेंड्स को इनकलकेट करोगे, उनको ये बताओगे, उनको लाओगे अपने साथ, तो आपका यू विल बी डूइंग अ गुड जॉब, अ ह्यूमैनिटेरियन जॉब. तो यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम गॉड फॉर दिस. सो जो माँ सरस्वती बैठी है ना, वो चीजें देखती है, ऑब्जर्व करती है कि कौन किसको हेल्प कर रहा है. So if Dr. Pankaj is helping you out, he is not getting out anything out of it, only helping you out for your benefit. So you spread it to your further friends, right? So you will be doing, getting some benefit out of it, godly. Do it. Good luck. Thank you, Pankaj. Thank Wonderful. you very much, sir. Thank you all of you for your time. Any questions, you can please get back to me on WhatsApp and I'll reply back when I get time. And I hope to see more attendance in the coming lectures. It's basically that we just want that whatever we have, we should share, because knowledge grows when you share. Hanji Dipanshu, anything you want to ask? और किसी ने कुछ पूछना है, आप most welcome. So then I can just wind up the session. I'll be the video of this is going to be available on our YouTube channel. Okay, I'll be putting it on my YouTube channel. I've already mentioned it there. I'll send the link to all of you. So please go and revisit it. You can just go through and you can ask your friends to see that there. And all the best to all of you. Hope to see you again next time. Very soon I'll be coming up with another. I'll be touching all these topics again in detail. We'll be taking some more lectures on case taking. I'll be taking it. And very soon I'll come up with this thing also, how to repeat a remedy, when to repeat a remedy. And then further lectures, and what I'm planning is you'll be having lectures on vitiligo, psoriasis, eczema, how to diagnose, how to prescribe, how to see whether the things are going right or not, so that you're able to help your patients when you're there in the clinic. So it will be a complete clinical and practical sort of the lectures which are going to be there. I'll not be talking of any bookish knowledge, any theoretical knowledge about सबको पता है psoriasis क्या होता है, सबको पता है vitiligo क्या होता है. I'll teach you how you're going to diagnose it, how you're going to decide that whether the remedy is right or not, how will you confirm in the follow-ups कि patient ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है. तो हर disease से related उसका क्या management होना चाहिए, क्या protocols होने चाहिए. So if you people are going to show interest and you also want to learn anything specifically you want me to take lecture on, you are most welcome to tell me. As and when I'll get time, I'll definitely prepare the presentation and bring it to you. So anyone has any questions, you can please ask, else we're going to wind up. Excuse me, Dr. Pankaj. Yes, doctor. Hello. Very nice. Very nice. Thank you, doctor. Thank you very much. Chaliye. Nice talking to all of you. Hope to see you again. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Take care. Bye.